everyone, a very warm welcome to today's session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well. सत श्री अकाल, नमस्कार, bonjour, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में जहाँ पे हम करने वाले हैं वन शॉट फाइनल रिविजन ऑफ आवर चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज। अब ये चैप्टर वैसे ही बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हैवी नहीं है। वी डू हैव अ लॉट ऑफ schemes and acts that we kind of need to remember, but because this chapter is not very long, it will not take us a lot of time to finish this in entirety in one shot. So let's get started. Let me quickly introduce myself to you. हाय बच्चों, मेरा नाम अंकना है और मैं हूँ आपकी एक्सपर्ट फॉर सोशल साइंसेज एट इम्बाइब। आई कम विद एन एक्सपीरियंस ऑफ more than 9 years in the field of education, where I've taught both online and offline to the students of CBSE and ICSE board. I have personally done my studies in the field of humanities and hence specialize in social science and English. Now talking about what are we going to do in today's session. क्योंकि वन शॉट है बच्चे, इंट्रोडक्शन टू पावर्टी, पावर्टी लाइन क्या होती है, एस्टिमेशन ऑफ पावर्टी क्या होता है, क्या कॉजेस है, व्हाट आर द एंटी पावर्टी मेजर्स, all of these things we will in fact be exploring. But before we do that, I want to tell you about a very important tool that you have very readily available for you, which is Imbibe Lens. So let's have quick lens moment of the day. All you need to do is just make sure that you have the app on your phone and you have given the access to the application for your camera. अपने कैमरा का एक्सेस देना है। फिर आपने जिस भी टेक्स्ट में आपको कंफ्यूजन है, जिस भी टेक्स्ट के बारे में आप पढ़ना चाहते हो, आप अपना फोन लोगे और उस टेक्स्ट को स्कैन कर लोगे, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। The moment you scan it, it will automatically highlight all the important keywords over here and start popping up as a suggestion. जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो। Let me quickly hide myself. ये देखो, यहाँ पे जब ये टेक्स्ट स्कैन किया गया है तो सारे कीवर्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। अब इन कीवर्ड्स से आप चूज कर सकते हो कि आप किस वर्ड के बारे में लर्न करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे कॉजेस ऑफ पावर्टी, इंट्रोडक्शन टू पावर्टी, एस्टिमेशन, एंटी पावर्टी मेजर्स, तो मैंने एंटी पावर्टी मेजर्स पे क्लिक किया एंड यू कैन सी दैट ऑल द वीडियोस व्हिच आर रेलेवेंट टू दिस टॉपिक हैव ऑटोमेटिकली स्टार्टेड पॉपिंग अप ओवर हियर। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस that's the beauty of this app, that you don't have to worry about doing your research, especially when you're trying to revise things. It gets very difficult to find anything easily readily available without spending less time on it. मिलता है हमें बहुत सारा रिसोर्सेज, बहुत सारा अच्छा कंटेंट, बट टाइम भी बहुत लग जाता है। So this helps us save that time, especially when you're in rush, and it's very interactive, right? You just have to scan the text, the words get highlighted, and you pick the word, and you do the watch the videos, you see the resources, you see the 2D model, you see the 3D model, whatever it is, it's readily available for you, right? So that's the beauty of this app. So go ahead, explore it. Now let's get started. We'll start with 3 questions. हम 3 सवालों के साथ शुरू करेंगे एक रिविजन के तौर पे। तो ये रहा हमारा पहला सवाल, assertion और reason का है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में भी बहुत काम आएगा ये हमारे। assertion कह रहा है that the Indian government adopts a dual strategy promoting economic growth and implementing targeted anti-poverty programs to address poverty. The reason says the alleviation of poverty has been a critical goal of India's development strategy. We have to identify सबसे पहले whether both the statements are true or not. यहाँ से ही शुरुआत करेंगे हम। हमारा सबसे पहला काम होने वाला है to identify whether the statements are true or not. अगर इनमें से एक भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स निकलता है तो हमारा काम वहीं पे हो जाता है। then we don't have to worry about reading the other options whether assertion and reason are true, क्या रीजन एक्सप्लेनेशन है, उस डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। हमें बस ये चेक कर लेना है कि हमारा जो असर्शन है और जो रीजन है वो फॉल्स निकल गया तो हमारा एक फॉल्स वाला सी और डी में से ऑप्शन हो जाएगा। बट अगर दोनों ट्रू है, then in that case what we have to do is, in that case we have to verify whether the reason is explaining the assertion or not. यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो ये कह रहा है the Indian government adopts a dual strategy promoting economic growth and implementing targeted anti-poverty programs. विच इज करेक्ट। हम पावर्टी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हमने स्कीम्स प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं, साथ ही साथ हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी कराना चाहते हैं। यानी कि इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि गरीबी हटाओ, इसका मतलब ये है कि जो जहाँ पे भी है वो इकोनॉमिकली ग्रो करे, बेटर हो जाए, उसकी जो इम्प्रूवमेंट है इकोनॉमिक स्टेटस की वो भी हो जाए और वो बेहतर कमाए,
और बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड बनाए अपनी जो है उसके ऊपर। तो गरीबों के साथ साथ जिन लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज मीट करने के भी पैसे हैं, जो रिच भी हैं, वो और ज्यादा बेटर अपने इकोनॉमिकल स्टेटस को कर सके। रीजन कह रहा है द एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी हैज बीन अ क्रिटिकल गोल ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, कि हम जब डेवलपमेंट के लिए अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी 5 ईयर प्लानिंग वगैरह बनाते हैं, उसमें ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो है लोगों की, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों मिल गया है हमें। नाउ व्हाट वी हैव टू डू एंड अंडरस्टैंड ओवर हियर इज दैट ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। तो हम चेक करेंगे कि द इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्ट्स अ डुअल स्ट्रैटेजी प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड implementing targeted anti-poverty programs to address poverty because the alleviation of poverty has been a critical growth of India's development strategy. It seems like both the statements are true, and somewhat an additional information and explanation is also being given by the reason to us. So both assertion and reason will become true, and the reason will be the correct explanation. So we know that the Indian government follows a twofold strategy that involves promoting economic growth as a mean to reduce poverty, along with the implementation of targeted anti-poverty programs to address the issue directly. The reasoning appropriately explains the overarching goal of India's developmental strategy, which is to elevate poverty. The Indian government has implemented these anti-poverty targeted programs specifically. These programs are designed to address the specific needs of disadvantaged and marginalized population. That brings us to the next question, the second question. what is guaranteed under मनरेगा? मनरेगा के अंदर किस बात की गारंटी मिलती है? एजुकेशन फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, सेफ्टी फॉर ऑल और एम्प्लॉयमेंट फॉर 100 डेज। तो मनरेगा हमें पता है महात्मा गांधी का जो नेशनल एक उनके नाम पे हमने एक नॉट एडुकेशन, आई वाज गोइंग टू से एडुकेशन, वहाँ पे हमने रेगुलर एम्प्लॉयमेंट का एक गारंटी एक्ट बनाया है, वही मनरेगा है। तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, अगर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है तो इट्स नॉट अबाउट एडुकेशन, it's not about health or safety. It is about that there will be employment and there will be employment for 100 days. अगर वो नहीं मिलता है तो उस चीज के लिए कॉम्पनसेशन मिलेगी, यानी कि गुजारा भत्ता दिया जाएगा, उसके बदले में लोगों को पैसे दिए जाएंगे। और ये कुछ 625 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू किया गया है, 2005 में इसका जो है इट स्टार्टेड। सो बेसिकली इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005, जो इंडियन पार्लियामेंट ने 23 अगस्त को पास किया था। इसका एम है कि लोगों को सिक्योरिटी मिले, जॉब सिक्योरिटी मिले कम से कम 100 दिनों की, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट जैसी बड़ी प्रॉब्लम लंबे समय तक ना रहे। 100 दिन भी लोग एम्प्लॉयड रहते हैं तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटस बेटर होती है, वो अपने आप को सस्टेन कर पाते हैं, कम से कम एक मेंबर को हमेशा। ठीक है, तो अडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर भी करते हैं कई बार, एंड दे गो हेड एंड डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क. Women were guaranteed 1/3 of the jobs that were made available under मनरेगा। तो औरतों के लिए जो है रिजर्वेशन भी बनाई गई, तो मनरेगा भी हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। अब हम बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हमें एक इकोनॉमिस्ट को आइडेंटिफाई करना है जिनके बारे में क्लूज दिए गए हैं। He is an Indian economist awarded the 1998 Nobel Prize in Economic Sciences for his contribution to the social choice theory and welfare economics and his concerns for the problems of the poorest members of society. Second statement कहता है he has written several books including Poverty and Famines, an essay on entitlement and deprivation. The third one says he gave the capability approach, which looks at poverty as deprivation in the capability to live a good life. तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? अमर्त्य सेन, मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह अहलूवालिया और रघुराम राजन, वो आपको आइडेंटिफाई करना है और बताना है। So take few seconds if you want to reread those descriptions. किसको नोबेल प्राइज मिला है? 1998 की बात हो रही है, किसने ये किताब लिखी है, वहां से आप बता सकते हो। अगर डिस्क्राइब कर सकते हो तो प्लीज डू गो हेड। एंड ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि मतलब उनके बारे में थोड़ा सा मेंशन अगर हमारी किताब में रहता है तो उनके बारे में लिखना, उनसे रिलेटेड चीजें पता होना आता है।
सो हियर वी गो एंड द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वुड बी अमर्त्य सेन। यहाँ पे बात हो रही है अमर्त्य सेन की। So he is one of the very well-renowned economists who majorly work in fostering social and economic inequality in the country. He has written the book जो information हमें देता है poverty के बारे में, shortage of food के बारे में, so on and so forth. So now let's get started. अब एक बात बताओ, खाना खाया है आज? पानी पिया है? शावर लिया है? या फिर फोन का इस्तेमाल किया है? साफ सुथरे कपड़े पहने हैं? अगर नहीं किया है तो अपनी चॉइस से नहीं किया होगा, बट इमेजिन करो कि ये बेसिक नेसेसिटीज, पीने का साफ पानी होना, घर में वाटर सप्लाई आना, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोविजन होना, पावर बैकअप होना, फोन अवेलेबल होना, नहाने के लिए प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल होना, कि ऐसा नहीं कि एक बकेट दे दिया और कह दिया कि भैया इसमें फिगर आउट करो, ये सब हमारे लिए प्रिविलेजेस हैं। वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वी आर लकी टू हैव दीज थिंग्स। ये कन्वीनियंसेस जो है हमारे लाइफ के, जिन्हें हम इतने ग्रांटेड तरीके से लेते हैं, वी आर एक्चुअली वेरी लकी टू हैव दिस, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया आर सफरिंग सो मच दैट दे डोंट इवन हैव एक्सेस टू as basic as clean drinking water or having enough water to take a shower. नहीं होता है लोगों के पास. So India still grapples with this problem of poverty, right? गांधी जी ने कहा भी था कि this is like the worst form of violence and we will truly get independent when we get independent economically. जब हमें गरीबी से आज़ादी मिलेगी तब वाकई में हम आज़ाद होंगे. So what exactly is poverty? How does it originate and how is it determined? That is what this chapter talks about. So let's revise. सबसे पहले बात शुरू करते हैं पावर्टी से. पावर्टी को आप डिस्क्राइब कैसे करोगे? पावर्टी का मतलब सिर्फ पैसे की कमी होना नहीं होता है. पावर्टी एक वाइडर चीज है, एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, और उसमें सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती है, उसमें और भी इश्यूज होते हैं जो एक फैमिली फेस कर रही होती है, और इस कंडीशन को, इस डेप्रिविएशन को, इस लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसिटीज को भी हम पावर्टी और गरीबी कहते हैं. So poverty is a state of extreme deprivation in which individuals or communities lack the essential resources for a basic standard of living, like clean water, access to sanitation systems, एक प्रॉपर वॉशरूम होना, या साफ वॉशरूम होना तो दूर की बात है, वॉशरूम का सिस्टम होना, ठीक है, या फिर खाने, 2 वक्त की खाने खाने के लिए आपके पास पैसे होना, आपके पास कपड़े होना अपने बदन को ढकने के लिए, सर पे छत होना, रोटी कपड़ा और मकान, जो बेसिक नेसेसिटीज हम कहते हैं. सो पावर्टी जब हम कह रहे हैं उसका मतलब सिर्फ हमारा ये नहीं है कि गरीबी है, लोगों की जिंदगी में पैसों की कमी है. इसका मतलब ये है कि जो बेसिक नेसेसिटीज है वो मीट करने के लिए भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे कि उनके पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है, साफ बाथरूम का एक्सेस नहीं है, शेल्टर नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, कपड़े नहीं है अपने बदन को ढकने के लिए, सो एंड सो फोर्थ. ठीक है. नाउ वेरियस फॉर्म्स ऑफ पॉवर्टी दैट वी ऑब्जर्व इन आवर कंट्री आर, आपको अलग अलग एस्पेक्ट्स के लोग मिलेंगे, अलग अलग दायरे के लोग मिलेंगे. जैसे कि गांव में हम देखते हैं कि फार्मर्स जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती, खेती बाड़ी करते हैं, वो किसान हैं लेकिन अपनी ज़मीन नहीं है. शहरों में हम देखते हैं वो लोग जिनके पास जो झुग्गी में रहते हैं, जो झोपड़ियों में, कच्चा घर में रहते हैं, स्लम्स में इकट्ठे एक छोटा जमीन पे एक कमरा बना दिया है, उस कमरे में 8 लोगों की फैमिली, 6 लोगों की फैमिली, सारी फैमिलीज रह रही है, वहीं पे किचन है, वहीं पे कमरा है, वॉशरूम है, कभी नहीं है, कभी शेयर्ड वॉशरूम है, पानी नहीं आता है, पानी जाकर लाना पड़ता है. ऐसे सारे लोग जो कहीं पे परमानेंटली एम्प्लॉयड नहीं है, उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक डेली वेज वर्कर की है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे या कहीं पे अगर हायर हो गए तो उस दिन का काम मिलेगा, नहीं हुए तो नहीं मिलेगा. चाइल्ड लेबर्स, जो छोटू हम बुलाते हैं रोड साइड वगैरह में, वो बेचारे छोटे बच्चे जिन्हें स्कूल में होना चाहिए वो स्कूल में होने की जगह इन ढाबों पे काम करते हैं. बेगर्स एंड ऑफ कोर्स देयर एम्पावर्ड चिल्ड्रन, जो होमलेस लोग सड़कों पे रहते हैं, ऐसे सारे लोग. ये अलग अलग तरीके से हमने गरीबी को हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट करते हुए देखा है. जो लोग परमानेंटली एम्प्लॉयड भी हैं, अगर ऐसा भी हो सकता है जिसे हम रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं, उसमें क्या हो जाता है कि अगर एक इंसान परमानेंटली एम्प्लॉयड भी है और मान लो 15,000 रुपए महीने का कमा रहा है, 12,000 रुपए महीने का कमा रहा है, फिर भी उसे जो है 10 लोगों की फैमिली को, 6 लोगों की फैमिली को, 8 लोगों की फैमिली को पालना है,
अब ऐसे केस में वो 10-12 हज़ार रुपए भी बहुत कम पड़ जाएंगे, क्योंकि हर एक इंसान के लिए 1 हज़ार रुपया भी ऑन एन एवरेज अवेलेबल नहीं होगा। तो पावर्टी ऐसे अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करती है। अगर इंडिया की बात की जाए तो लगभग 1/5 ऑफ आवर पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड पुअर, जहाँ पे, जिसको अगर आप नंबर में देखो तो 27 करोड़ लोग हैं। ये 2011 से 12 का डेटा हमें बताता है। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है, अगर परसेंटेज सेम भी रह गया है, तो हमारी ये पॉपुलेशन अंडर द पावर्टी सेक्शन वो भी बढ़ गई है, 27 से शायद 28 करोड़ हो गई हो। तो इंडिया में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पुअर पीपल इज वेरी वेरी हाई। जब हम देखते हैं हमारा पावर्टी इंडेक्स, तो हम बहुत ज़्यादा नीचे तौर पे आते हैं इन टर्म्स कि हमारा मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत कम हो जाता है और गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो कई सारे गरीब लोगों में हम बहुत ज़्यादा आते हैं। इंडिया के पास इंडिया में लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पुअर इंडिविजुअल्स का एग्जिस्ट करता है। ये हाईलाइट करता है एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम जो गरीबी हमारे लिए लेकर आ रहा है। बच्चे, जब तक गरीबी होगी, एजुकेशन की प्रॉब्लम रहेगी, हेल्थ फैसिलिटीज की एक्सेस की प्रॉब्लम रहेगी। गवर्नमेंट अगर पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड भी कर रहा है, डिस्पाइट ऑफ दैट, पीपल हु आर पुअर, स्पेशली लेट्स से इन अ रूरल एरिया, wouldn't have access to a good education or a healthcare system even being provided by government। चाहे वो अच्छा हो या ना हो, जो बेसिक फैसिलिटीज भी प्रोवाइड हो रही है उसके पास उसके लिए एक्सेस ही नहीं होगा। ठीक है, या फिर वो चाहेगा कि उसके बच्चे काम कर ले, ना कि एडुकेट हो। अब ये क्या कर रहा है, ये हमारे देश के फ्यूचर पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, क्योंकि हमें पता है जब हम पीपल एज रिसोर्स पढ़ते हैं कि जब आपके पास एक्सेस टू गुड हेल्थ होता है, गुड एजुकेशन होता है, तभी एक इंसान एक रिसोर्स में ट्रांसफॉर्म होता है और वो रिसोर्स आगे चल करके ह्यूमन कैपिटल डेवलप करता है। पर अगर गरीबी है तो उस रिसोर्स में ट्रांसफॉर्मेशन ही चैलेंज सबसे पहले बन जाता है, और इसीलिए डेवलपमेंट ऑफ द नेशन आगे गोइंग फॉरवर्ड विल डेफिनेटली बी अ बिगर बिगर इशू। और इस बात को ध्यान में रखते हुए, प्लस गरीबी है तो लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, ज्यादा प्रेशर होगा कुछ थोड़े से पॉपुलेशन पे जो कमा रही है इन सारे लोगों का ध्यान रखने के लिए, और कभी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी। देश की जो इकोनॉमिकल स्टेटस है वो नीचे ड्रॉप होती जाएगी। इसीलिए गरीबी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो सोसाइटल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जो नेशन के आपके प्रोग्रेस को चैलेंज करता है। So the government has implemented various anti-poverty measures to address this issue। इस इशू को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये ओवरऑल देश के ग्रोथ में हैम्परिंग कर रहा है, सरकार ने बहुत सारे पॉलिसीज बनाना शुरू कर दी हैं। तो अब इस क्वेश्चन को आंसर कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड पुअर, विच इज अराउंड 270 मिलियन और 27 करोड़ पीपल एज ऑफ 2011 and 2012। Is this statement true or is this statement false? ये स्टेटमेंट हमारा पॉपुलेशन के अमाउंट में सही है, लेकिन जो प्रपोर्शन बताया गया, जो रेशियो बताया गया 1/3 का, वो गलत है। 1/5 ऑफ आवर पॉपुलेशन विच इज रफली 27 करोड़ वो फॉल करती है अंडर पावर्टी। ठीक है, बेसिकली पुअर सेक्शन में, इसलिए ये गलत है। अब पावर्टी की जो सिनेरियो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। अब इसके लिए हम एक केस स्टडी करते हैं। अर्बन पावर्टी का पहले एग्जांपल लेते हैं। राम शरण 33 इयर्स का है और एक डेली वेज लेबरर है रांची झारखंड में। उसकी अर्निंग काफी एराटिक है। एराटिक है कहने का मतलब है कि कंसिस्टेंट नहीं है, कभी पैसे आ जाते हैं, कभी पैसे नहीं आते हैं, कभी अच्छे पैसे आ जाते हैं कि मतलब अच्छे से उस दिन, उसके अगले दिन जब आ रहे हैं पैसे तो खाना पीना घर का परिवार का खर्चा चल जाएगा, और कभी कभी बिल्कुल ही नहीं आ रहा है कि लोग जो है बिल्कुल परेशान हो गए हैं। आज अभी सुबह नाश्ता कर लिया है, रात के खाने के लिए, दोपहर के खाने के लिए भी खाना होगा, पैसा होगा कि नहीं पता नहीं होता है। तो ये लगभग जो है 1500 रुपए पर महीने ही अर्न्स, विच इज यू कैन इमेजिन 1500 रुपीज पर मंथ। हम कई बार जाकर के एक मील पे इतने पैसे खर्च कर देते हैं। और ये अकेले नहीं है राम शरण, उनकी फैमिली है 6 मेंबर्स की, जिनमें वाइफ है, 4 बच्चे हैं। ठीक है, और ये बच्चे 12 साल से लेके 6 महीने तक के हैं, यानी कि छोटे 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 बच्चे हैं। 12 साल भी बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है।
अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भर भर के इनके कंधों पे है, क्योंकि इनको अपने बड़े एल्डर्स, जो एल्डर पेरेंट्स हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग पेरेंट्स हैं, उनका भी ध्यान रखना है, जो कि पास में ही एक गांव में रहते हैं। वो शहर में रांची में इनके साथ नहीं रहते हैं, लेकिन उनका ख्याल भी यही रखते हैं। तो ये दो कपल जो है, हस्बैंड वाइफ, वो हो गए, उनके 4 बच्चे, 6 लोग, और 2 माँ बाप भी हैं। तो टेक्निकली 8 लोगों की जिम्मेदारी रामशरण के कंधे पे है। ठीक है। नाउ हाउसिंग की अगर बात की जाए, so we see that in terms of house, he has one room rented house in a crowded basti on the outskirts of the city. घर इनके पास नहीं है। इनका घर जो है सिटी के सेंटर में, बच्चे घर रहना और लगा रखना काफी डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि महंगाई ज्यादा होती है, क्योंकि सेंटर में ही सारी एक्टिविटीज हो रही है। तो ये आउटस्कर्ट्स में रहते हैं ताकि जो घर का दाम है वो थोड़ा कम हो सके, और उसमें भी एक क्राउडेड बस्ती में, स्लम में, कच्चे हाउसेस वाले एरियाज में। ऐसा नहीं है कि शहर के बाहर रह रहे हैं और आउटस्कर्ट्स पे रह रहे हैं, तो इनके लिए जो है एक्सेसिबिलिटी ज्यादा मतलब ईजी हो जाती है, और वो बेटर घर अफोर्ड कर पा रहे हैं। वहां पे भी बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं, लेकिन उस बुरी हालत में भी सिटी सेंटर के पास नहीं रह पा रहे, इतने पैसे भी नहीं है। लिविंग कंडीशंस जो है वो वैसी है कि कच्चा घर है, एक शैक ऑफ ब्रिक्स बना रखा है, क्ले टाइल्स लगा रखी है, झोपड़ी जो जिसे कहते हैं झुग्गी के ऊपर खपड़े का मकान जो है कच्चा सा बना रखा है। वाइफ भी इनकी काम करने जाती है, पार्ट टाइम काम करती है, बच्चों का ध्यान रखने के ऊपर से लोगों के घरों में जाकर साफ सफाई की, और उससे उन्हें महीने का 800 रुपए मिलता है। मील्स की अगर बात की जाए, तो अगर इनको 2 वक्त की रोटी भी परमानेंटली मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है फॉर द एंटायर फैमिली, और वो भी बहुत फैंसी खाना नहीं, बेसिक दाल चावल, जो कि ज्यादातर इनसफिशियंट होता है, अमाउंट में भी इनफ प्रेजेंट नहीं होता है। प्रॉब्लम ये है कि बड़ा बच्चा इनका जो है वो 12 साल का है मात्र। 14 साल तक के नीचे के बच्चे को आइडियली स्कूल में रहना होता है, ना कि जाकर कहीं काम करना होता है, बट इस उम्मीद में कि उसे थोड़े से पैसे मिल जाएंगे। वो भी एक चाय की दुकान पे काम करता है, वो जो छोटू हम देखते हैं कई बार, जो पढ़ाई छोड़ करके काम कर रहा होता है, वो करता है, और उसको मात्र 300 रुपए महीने के मिलते हैं। 10 साल की जो दूसरी छोटी बेटी है, वो उससे भी 2 छोटे जो यंगर सिबलिंग्स है उनका ख्याल घर पे रखती है, यानी कि वो भी स्कूल नहीं जा रही है, वो बाकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फैमिली को निभा रही है, अगर इकोनॉमिकल नहीं भी निभा रही है तो। नेचुरली कोई भी बच्चा एजुकेशन सीख नहीं कर रहा है। 4 बच्चे इनके, तो आप सोचो ये 4 बच्चे जो आगे चलकर 4 फैमिलीज बनाएंगे, वो अनएडुकेटेड ही रहेगी, क्योंकि राम शरण और उसकी फैमिली अभी अफोर्ड नहीं कर सकती है इन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना। हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन नेचुरली बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। पब्लिक सर्विसेज के तौर पे जो अवेलेबल है वो उसे फिर भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इनके पास इनफ खाना नहीं है, तो इनके बच्चे अंडर नरिश्ड हैं। उसमें बड़े बच्चे काम भी कर रहे हैं, एंड दे डेफिनेटली आर नॉट गोइंग टू स्कूल्स टू बी एबल टू हैव मिड डे मील्स और समथिंग टू अफोर्ड देमसेल्व्स। अर्बन पॉवर्टी चैलेंजेस जो है वो उनके लाइफ के बहुत बड़े बने हुए हैं। इनको बेसिक नेसेसिटीज मीट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और अपने लिविंग कंडीशंस को ये ठीक नहीं कर पा रहे। अभी एक केस स्टडी हमने देखा आपका शहरों का, अब एक केस स्टडी हम देखते हैं, अब एक और केस स्टडी हम देखते हैं जो कि है आपका रूरल एरियाज का। तो लखा सिंह एक स्मॉल विलेज में रहता है नियर मेरठ, यूपी में। ठीक है। नो लैंड ओनरशिप ही हैज, एक लैंड की जो है ओनरशिप नहीं है इनके पास। फैमिली जो है इनकी और जॉब्स करती है फार्मर्स की। इनकी इनकम जो है काफी अनप्रिडिक्टेबल है। 50 रुपए कभी कभी एक दिन के मिल जाते हैं, या फिर कई बार वो भी नहीं मिलता। कोई अगर काम करा रहा है तो हो सकता है थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा दाल चावल, ऐसी सारी चीजें काइंड्स में पे कर दे। स्ट्रगल होती है इनको अगेन 2 वक्त की रोटी भी अपने लिए प्रोवाइड करा पाने की 8 लोगों में। लिविंग इन अ कच्चा हट ऑन द विलेज आउटस्कर्ट्स वी हैव सीन। तो ये गांव में भी सेंटर में नहीं रह पा रहे हैं, विलेज के आउटस्कर्ट्स में रह रहे हैं। वुमेन कलेक्ट फॉडर एंड फायर फूड इन द फील्ड्स। तो औरतें क्या करती हैं? घर का ख्याल रखना, घर में खाना वाना बनाना, जाकर के लकड़ियां जोड़कर लाना, ताकि ये सब चीजें खरीदने ना पड़े। ये जो ऑल्टरनेटिव है वो अपना फिजिकल लेबर करके और मेहनत करके घर के बाहर निकल करके उसको फुलफिल करने की कोशिश करती है। यहाँ पे इनके फादर को ट्यूबरक्यूलोसिस है, लेकिन उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही है बिकॉज दे डोंट हैव मनी और एक्सेस टू प्रॉपर मेडिकेशन।
और हेल्थ केयर सर्विसेज। गांव में है तो वहां पे अच्छा हेल्थ केयर सर्विस, इवन पब्लिक प्रोवाइडेड सर्विसेज भी नहीं एग्जिस्ट करती है। कोई भी बच्चा यहाँ पे इनका स्कूल नहीं जाता है। इनकी मदर की डेथ भी इनफैक्ट इस ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से ही हो गई थी, और उन्हें भी लैक ऑफ मेडिकेशन था। तो ही उनके लिए Lakha Singh could not access healthcare services and provide her the proper treatment that was required. एज आई सेड, कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है, और बच्चे 10 साल की उम्र से मात्र काम करने लग गए हैं। इनके पास नए कपड़े मिल पाना एक बहुत बड़ा लग्जरी और प्रिविलेज है। ये बेसिक आइटम्स जैसे कि सोप, ऑयल, ये सब भी मिल पाना इनके लिए बहुत एक लग्जरी की बात है। बस गुजारा चल जा रहा है, पानी मिल जा रहा है कि नहा पा रहे हैं, दूसरे लोगों के मिले हुए कपड़े पहन पा रहे हैं, या इनके पुराने कपड़े हैं उससे ही सरवाइव कर रहे हैं, इतना ही इनके लिए काफी है। तो इन दो केसेस से अब हमें समझ आ रहा है कि पावर्टी जो है बहुत बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकती है अपने आप को लोगों की लाइफ्स में, ब्रिंगिंग इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस। तो अब इसके डायमेंशंस के बारे में, इसके अलग फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। सबसे पहले क्या होता है, पावर्टी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लोगों के पास खाना नहीं हो पाता है, और लैक ऑफ प्रॉपर हाउसिंग नहीं हो पाती है। कई सारे लोग होमलेस रहते हैं, सड़कों पे रहते हैं, सड़कों पे ही बैम्बूज लगाकर, स्टिक्स लगाकर, किसी तरह से रैग्स से उसको ढक करके उसमें रहेंगे, या किसी ब्रिज के नीचे या कहीं पे घर बना लेते हैं और वहां पे रहते हैं, या फिर कई बार स्लम्स में, झुग्गीज में, छोटी सी झोपड़पट्टियों में रहते हैं। तो घर प्रॉपर नहीं होता है। तो एक डायमेंशन क्या है, एक डायमेंशन ये है कि खाना, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट आपसे कभी भी पूछी जाए, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट लाइफ की क्या होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो सबसे पहला डायमेंशन क्या होगा, रोटी, कपड़ा और मकान नहीं होता है, कपड़े नहीं होते हैं, घर नहीं होता है, और 2 वक्त की रोटी ढंग से मिल जाए इसकी कोई एश्योरेंस नहीं होती है। अब जब ये सब नहीं हो पा रहा है तो लोग कमाने जाते हैं। नेचुरली उनके पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि वो अपने आप को एडुकेट भी कर सके। इवन इफ द गवर्नमेंट इज ऑफरिंग अ पब्लिक सर्विस ऑफ एडुकेशन, हेल्थ केयर को साइड रखते हैं अभी, तो उस एडुकेशन सर्विस में जाने के लिए उन्हें बच्चे काम ना करें, ये सब छोड़कर पढ़ाना लिखाना चाहिए ताकि वो आगे चल के थोड़ा बेहतर काम कर सके, बट वैसा नहीं करते हैं। गरीबी इतनी होती है कि बहुत छोटी सी उम्र से ही बच्चों को काम पे भेज दिया जाता है कि 300, 500, 1000 जो ही पैसा वो अर्न करके आए, उससे उनका भला हो सके, फैमिली में थोड़ी सी मदद हो सके। इसकी वजह से हेल्थ केयर के भी इश्यूज आते हैं। जो स्पेशली गांव में रह रहे होते हैं लोग, उनके पास तो रेगुलर पब्लिक हेल्थ केयर की भी एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि गांव में कई जगह अच्छे पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं है। बट इवन इन दी अर्बन एरियाज दे डू फेस चैलेंजेस, एंड पब्लिक सर्विसेज भी जो है हेल्थ केयर की थोड़ी लिमिटेड है, हर एक चीज का एक्सेस वहां पे नहीं होता है। सो यहाँ पे व्हाट वी सी इज दैट देयर इज अ लैक ऑफ हेल्थ केयर, जहाँ पे इंडिविजुअल्स फ्रीक्वेंटली अपने आप को देखते हैं कि दे आर नॉट एबल टू फाइंड प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, दे आर नॉट एबल टू रीच द हॉस्पिटल्स और नॉट हैव प्रॉपर diagnosis of their diseases, and a lot of times they have to suffer very long period of time, or they pass away at a very younger age, do not have a very long life expectancy. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसिटी अबव एंड बियॉन्ड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, हेल्थ केयर वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन नहीं भी मिल रही है तो आप जिंदा तो रह सकते हो, एक डिसेंट लाइफ, फिर भी डिसेंट नहीं बट एक हेल्दी लाइफ शायद लीड कर सकते हो, लेकिन क्लीन वाटर और सैनिटेशन की भी अवेलेबिलिटी नहीं होती है। पीने के लिए भी साफ पानी नहीं होता है, आपके पास पीने के लिए पानी आएगा नहीं आएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। एंड ऑफकोर्स क्योंकि लोग ऐसे हालात में रह रहे होते हैं कि सड़कों पर रह रहे हैं, शेल्टर नहीं है, ऐसे केसेस में प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज भी नहीं होती है, जो कि नेचुरली हेल्थ रिस्क को बहुत इंक्रीज कर देती है, उनके लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द वेरियस डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी, lack of sanitation, clean water, basic necessities like food, shelter, clothes, basic issues of accessibility to education, accessibility to healthcare, accessibility to opportunities of life in general, which would be employment challenges बहुत ज्यादा आते हैं। ये लोग uneducated होते हैं, इनके अंदर एक रश होता है कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी जो भी जॉब मिल जाए, जैसे भी मिल जाए, कि पैसे आते रहे। तो ये इंतजार करके एक अच्छे बेटर जॉब जो थोड़ी सिक्योर हो उसके लिए वेट करें, ये नहीं हो सकता है। प्लस दे आर नॉट स्किल्ड, दे आर नॉट एडुकेटेड इस
वजह से भी प्रॉब्लम आती है. सो मेनी एम्पावरिश्ड इंडिविजुअल्स लैक रेगुलर जॉब्स दैट प्रोवाइड अ मिनिमम डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. कि इतना इतना खर्चा आ जाए कि आप कम से कम तो अपने लिए साफ पानी, थोड़ा सा बेसिक हेल्थ केयर, थोड़ा सा खाना, शेल्टर, ये सब मैनेज कर सको. ये एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस भी इनके साथ बहुत ज़्यादा रहती हैं. और ऑफ कोर्स दैट ब्रिंग्स अस द हेल्पलेसनेस अलोंग विथ इटसेल्फ. जब लोग इतनी गरीबी में जी रहे होते हैं, इतनी मजबूरी में जी रहे होते हैं, तो वो कॉन्स्टेंटली बहुत हेल्पलेस, बहुत कमज़ोर, बहुत अंडर पावर्ड फील करते हैं. एंड ऑल ऑफ दिस फर्दर लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ सोशल मार्जिनलाइजेशन. सोशल मार्जिनलाइजेशन क्या होता है? मार्जिनलाइजेशन क्या होता है उससे अगर समझें हम, तो सबसे पहले मार्जिनलाइजेशन की प्रॉब्लम क्या होती है? आप जब अपने नोटबुक को ओपन करते हो तो आप देखते हो एक मार्जिन बना रहता है, या नहीं बना होता है तो आप बनाते हो. क्यों बना रहे हो? आप साइड में जो साइड मेन चीज नहीं है उसको साइड लाइन करके जो मेंशन करनी है उसको वहां पे लिखने के लिए हम मार्जिन बनाते हैं. ऐसा हम सोशल ग्रुप्स के साथ, लोगों के साथ भी सोसाइटी में कर रहे हैं. कुछ लोगों को हमने मेन सोसाइटी से साइड लाइन कर दिया कि वो साइड में कोने में रहेंगे, वहां पे रहेंगे, वहां पे ही अपना गुजारा करेंगे, वहां पे ही अपनी सर्वाइवल करेंगे. सो पुअर पीपल ऑफन फेस दिस ट्रीटमेंट. उनको मेन चीजों में, मेन अपॉर्चुनिटीज में शामिल ही नहीं किया जाता है. उनकी ट्रीटमेंट बहुत अनइक्वल और बहुत अनफेयर तरीके से की जाती है, बहुत बुरे तरीके से बर्ताव किया जाता है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती है, कोई इक्वालिटी नहीं होती है. राइट. तो अलग अलग एस्पेक्ट्स में, जैसे कि फार्म्स, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिस, हॉस्पिटल्स, पब्लिक स्पेसेस, हर जगह दुर्व्यवहार किया जाता है लोगों के साथ. या फिर मतलब आप सिंपल सी बात देखो, अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, अगर आप अच्छे घर से आते हो, आप थोड़े अच्छे घर से आते हो, कहने का मतलब है कि इकोनॉमिकली स्टेबल हाउस होल्ड, ठीक है, तो इट विल रिफ्लेक्ट इन योर क्लोथिंग, इन द वे यू टॉक, बिकॉज यू वुड बी एडुकेटेड. एंड इफ यू गो एंड मीट द स्टाफ ऑफ अ हॉस्पिटल ऑफ सच काइंड, और आपके साथ कोई एक ऐसा इंसान भी आया है जो थोड़े फटे कपड़ों में आया है, या दिख रहा है कि गरीब है, परेशान है, और दोनों को प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी लोग आपको बेटर ट्रीटमेंट देंगे, आपसे थोड़े अच्छे से बात करेंगे. लेकिन उन लोगों से जो गरीब है उन्हें बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है, डांट टपट कर बात की जाती है. सो दैट इज द इल ट्रीटमेंट दैट कम्स एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी. दैट पर्सन मे बी द हम्बलेस्ट पर्सन. जो वो गरीब इंसान है, वो दिल का बहुत अच्छा इंसान हो सकता है वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग्स डज नॉट गेट द प्रॉपर ट्रीटमेंट दैट दे डिजर्व. इनफैक्ट अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए हॉस्पिटल गए हैं तो उनको ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, उनको डॉक्टर भी डांटता है, उनकी ट्रीटमेंट सही नहीं होती है, उनके साथ जो बिहेवियर होता है वो सही नहीं होता है. तो ये मार्जिनलाइजेशन हो जाती है, इल ट्रीटमेंट अपने आप एक तरीके से इन्वाइट हो जाता है. लोग जज करते हैं कि ये लोग ऑनेस्ट नहीं होंगे, उनके अंदर वैल्यूज, मॉरल्स, एथिक्स नहीं होंगी. क्यों? बिकॉज एक प्रिजम्पशन है दैट पीपल आर नॉट एजुकेटेड, दे आर कमिंग फ्रॉम अ इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड, सो दे मस्ट बी ग्रीडी, सो एंड सो फोर्थ. तो दैट ऑल्सो कम्स एज अ प्रॉब्लम विथ पॉवर्टी. इसके साथ आती है एस्पिरेशन फॉर इम्प्रूवमेंट. नाउ वी सी दैट नोबडी एस्पायर्स टू बी लिविंग इन अ पावर एम्पावरिश्ड सिचुएशन. कोई भी बच्चे नेचुरली गरीबी में नहीं रहना चाहता है. तो वो एक ऐसा सिचुएशन है जहां से पावर्टी की एक बहुत बड़ी आपकी डायमेंशन निकलती है, विच इज द एस्पिरेशन टू गेट रिड ऑफ दिस सिचुएशन. उस गरीबी से बाहर निकल पाना, अपनी जिंदगी बेहतर कर पाना. इंडिया में चैलेंज क्या आ रहा है हमारा? हम ऑफ कोर्स हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतने सारे जो गरीब हैं उनको हम इनफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वो अपने स्टेटस को इकोनॉमिकली थोड़ा स्टेबलाइज कर सके, एज अ रिजल्ट ऑफ विच एटलीस्ट दे आर एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर फूड एंड हेल्थ केयर एंड एजुकेशन एंड बेसिक नेसेसिटीज लाइक क्लीन वाटर, सैनिटेशन टू देयर फैमिलीज, ताकि उसके बाद उनकी जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो बेटर हो सके. ऐसा कहते हैं कि एक परिवार जो बहुत ज्यादा गरीब है, उस गरीबी से निकलने में 6 पीढ़ियां, ऑलमोस्ट 6 जनरेशन्स लग जाते हैं. और 6 जनरेशन आप समझ रहे हो, 100-150 साल की बात कर रहे हैं. सो महात्मा गांधी का विजन ये था. महात्मा गांधी ने इनफैक्ट ये कहा है. सो ही इमेजिन्ड ऑफ कोर्स द वर्ल्ड टू बी अ बेटर प्लेस एंड इंडिया टू बी वेरी इंडिपेंडेंट एंड डेवलप्ड नेशन. बट ही वेरी वेल एम्फसाइज्ड ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस दैट हम आजादी ट्रू सेंस में तभी अचीव करेंगे, वी विल ट्रूली बी इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन जो पुअरेस्ट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन है
वो अपनी ह्यूमन सफरिंग से आजाद होगा। सिर्फ गरीबी फिर प्रॉब्लम नहीं होती है, गरीबी के साथ साथ जो ट्रीटमेंट हो रही है, जो मार्जिनलाइजेशन हो रही है, जो सोशल एक्सक्लूशन हो रही है, यानी कि जो कॉन्सिक्वेंसेस गरीबी अपने साथ लेकर के आ रही है, वो और ज्यादा चैलेंजेस प्रेजेंट करती है, वो और ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम प्रेजेंट करती है फॉर दीज पीपल इन जनरल। सो दैट बिकम्स अनदर वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। तो गरीबी सिर्फ अकेले प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही है, आगे का फ्यूचर भी बहुत ज्यादा डाइसी बना रही है और वहां पे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु एडवोकेटेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट only when the poorest of its people become free of human suffering? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ये किसने बोला कि हम लोग, इंडिया बेसिकली अपनी गरीबी से प्रॉपरली तभी आजाद होगा जब सॉरी इंडिया प्रॉपरली तभी आजाद होगा जब उसे अपनी गरीबी से आजादी मिलेगी। So we have just done this. We did this in the beginning of the session as well as a discussion, right? So the correct answer is Mahatma Gandhi. It was him who envisioned India to be, of course, in a particular way and independent and empowered. But we also understand that he emphasized very well that India will truly be free, truly be independent when people come out of their poorest segments, because उसके साथ जो challenges हम face करते हैं वो खत्म होना बहुत जरूरी है हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए। अब हमारे सोशल साइंटिस्ट इस गरीबी को कैसे देखते हैं? सोशल साइंटिस्ट कौन हो गए? जो सोसाइटी की स्टडी कर रहे हैं। गरीबी के बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स है, बहुत अलग अलग डिमेंशन है, जैसे हमने देखे, राइट? एंड इट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। We have already seen that it comes with multiple dimensions, multiple features to it. So we have to understand that how does a scientist, a person who does a study of the society on a very very factual manner, वो कैसे assess करता है गरीबी को? तो सबसे पहले आता है diverse indicators में। Social scientists employ various indicators to assess and understand this. तो एक चीज हमें ये समझ आ रही है कि गरीबी एक तरीके से सिर्फ नहीं जांची जा सकती कि पैसे कम है। ये एक मल्टी फेसेटेड नेचर का प्रॉब्लम है। इसके बहुत सारे डायमेंशंस है, बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, और उन्हीं एस्पेक्ट्स को डिजाइन किया गया है, एक तरीके से फॉर्मुलेट किया गया है बाय द सोशल साइंटिस्ट्स टू डू अ स्टडी ऑन दैट बेसिस। ट्रेडिशनली फोकस हमारा क्या रहा है? ट्रेडिशनल फोकस हमारा यही रहा है कि लोगों के पास इनकम नहीं है तो वो गरीब है, इनकम है तो वो गरीब नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसे एक एस्पेक्ट ये भी हो जाता है कि एक इंसान जो कि 20-25 हजार रुपए भी कमा रहा है, बट अगर उसे 10 लोगों का ख्याल रखना है, उसके परिवार में 10 लोग हैं और वो शहर में रहता है, तो वो गरीब ही रहेगा और काफी गरीब रहेगा, राइट? तो ये भी एक जो है एस्पेक्ट हो जाता है गरीबी का। सो ट्रेडिशनल फोकस हमारा इस चीज पे रहा है कि इट डजेंट मैटर आपका इनकम कितना है, आप उसके साथ ये भी मेजर करोगे कि आपका कंजम्पशन कितना है। along with the income, another element that you are also measuring is the consumption that is being done, which means जैसे ये एग्जाम्पल हमने लिया कि किसी का इनकम अगर 25,000 रुपए का है, लेकिन उसका कंजम्पशन एक टेक्निकल तरीके से एक डिसेंट सर्वाइवल के लिए अगर 30,000 होने चाहिए, तो वो इंसान बहुत गरीबी में रहेगा। लेकिन अगर किसी की फैमिली मान लो 2 लोगों की है, एक बेसिक नेसेसिटीज को मीट करते हुए उनका खर्चा 20-22,000 में निकल सकता है, और ऐसे इंसान की सैलरी 25,000 है, ठीक है, या 24,000 है, तो ये इंसान फिर पॉवर्टी में फॉल नहीं करेगा। सो द सेम अमाउंट ऑफ इनकम in the same space still can be different because it depends on the
consumption level. So that is a very very important key factor in measuring poverty. ठीक है, हमारा अप्रोच जो है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करता रहा है. वी हैव हैड कॉन्टेम्प्रेरी व्यूज ऑन पावर्टी इनकॉर्पोरेटिंग अ वाइडर रेंज ऑफ सोशल इंडिकेटर्स. तो सिर्फ लेकिन पैसों पे हमने उसको लिमिट नहीं किया है, उसके ऊपर भी हम कुछ चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं. और इसमें ब्रॉडर इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो एडुकेशन हो जाएगा, हेल्थ केयर हो जाएगा. अगर आपके पास एक्सेस टू एडुकेशन है, हेल्थ केयर है, तो आप एक बेटर फ्यूचर बिल्ड कर रहे हो. आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो बेटर होगी. अगर आपके पास इन सब चीज़ों की कमी है, ये सब चीजें पूरी नहीं हो पा रही हैं, then it will be very very problematic. So there's limited access to healthcare, lack of job opportunities, inadequate access to safe drinking water, sanitation. The basic necessities if are not being met. ये broad indicators बनते हैं जिसके बेसिस पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इंसान गरीब है, नहीं है, कितना नहीं है. Now, another problem that poverty kind of leads to is social exclusion. और social exclusion को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये दोनों ही आपका कॉज भी है और रिजल्ट भी है, राइट? तो सोशल एक्सक्लूजन क्या है बच्चे? सोशल एक्सक्लूजन हमारा, सॉरी वन सेकेंड, सोशल एक्सक्लूजन हमारा कॉज भी है और हमारा रिजल्ट भी है. कैसे ही हमारा कॉज भी है और हमारा रिजल्ट भी है. सोशल एक्सक्लूजन होता क्या है? सबसे पहले सोशल एक्सक्लूजन के बारे में समझते हैं. सोशल एक्सक्लूजन से हमारा मतलब ये है कि अगर कोई इंसान पुअर है, ठीक है, तो वो उसे क्या होगा, साइडलाइन रखा जाएगा. साइडलाइन रखा जाएगा बाय पीपल हु आर नॉट पुअर. वो कभी भी उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी और इंक्लूजन नहीं देंगे. इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इंक्लूजन विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू दिस पर्सन. अब क्या हो रहा है, अब इस वजह से क्योंकि वो गरीब है, उसे अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस नहीं मिल रहा है, उसे मेन चीजों में इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है और उसे साइडलाइन और मार्जिनलाइज रखा जा रहा है. तो वो जहां था वहीं फंसा रह जाता है, क्योंकि वो वहां का था उसे नहीं इंक्लूड किया जा रहा है. और अब ये बन गया रीजन कि क्यों इंक्लूड नहीं किया जा रहा है. लेकिन क्योंकि इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, वो हमेशा उसी गरीबी में फंसा रह जाएगा, उसे बेटर अपॉर्चुनिटीज अपलिफ्ट होने की मिलेंगी ही नहीं. तो ये कॉज भी बन जाता है पावर्टी का. तो सोशल एक्सक्लूजन कॉज के साथ साथ आपका रीजन के साथ साथ कॉज भी बन जा रहा है और ये एक विशियस साइकिल फॉर्म करता है. तो पावर्टी को जब एनालाइज किया जाता है तो हमें समझ आता है कि हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्सक्लूजन देखा है, जहाँ पे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती है और रिसोर्सेज नहीं दिया जाता है. वो साइडलाइन है तो साइडलाइन ही रखा जाता है, उनके साथ बाकी चीजें शेयर नहीं होती हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट नहीं की जाती है. ठीक है, और ये क्या बन जाता है, आपका रीजन और रिजल्ट दोनों ही वजह भी बन जाता है और जो रिजल्ट होता है, कॉन्सिक्वेंस होता है, वो भी बन जाता है. वल्नरेबिलिटी के फोकस की अगर बात करें, सो असेसिंग पावर्टी थ्रू वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स हैज बिकम इंक्रीजिंगली कॉमन, highlighting the likelihood of individuals falling into poverty or remaining impoverished. अब ये सोशल एक्सक्लूजन जो है वो कहीं ना कहीं लीड कर रहा है वल्नरेबिलिटी को भी. वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है? वल्नरेबल का मतलब होता है वो इज एट अ हायर रिस्क और एक्सपोजर ऑफ हार्म. तो बच्चे जो लोग गरीब होते हैं उनके पास इतने सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं कि उसकी वजह से कभी भी कोई डिजास्टर आता है, कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपदा आती है, जैसे कि कोरोना वायरस के टाइम पे हमने देखा, जो सबसे ज्यादा डैमेज सहेगा या सफर करेगा उसे हम वल्नरेबल सेक्शन कहते हैं. और वो हमने देखा है नेचुरली, हिस्टोरिकली, वो ज्यादातर पावर्टी स्ट्रिकन लोग ही होते हैं जो सबसे ज्यादा सफर करते हैं. ठीक है, so now talking about social exclusion a little bit more in detail. We have already however understood this, so I'm not going to dwell into a lot of detailed explanation of this. पावर्टी जो है वो सोशल एक्सक्लूजन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पुअर लोग जो है वो डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, उन्हें बेटर ऑफ चीज़ों से हमेशा एक्सक्लूड करके रखा जाता है. अब इसकी वजह से ये दोनों कॉज और रिजल्ट बन जाता है पावर्टी का, क्योंकि वो गरीब है उन्हें एक्सक्लूड करके रखा जाता है और क्योंकि उन्हें एक्सक्लूड करके रखा जाता है वो गरीब ही रह जाते हैं. किसी को अगर आप एक एक्सेप्शन बना करके निकाल दो गरीबी से और कहो चलो ठीक है हम आपको एडुकेशन प्रोवाइड करेंगे, हम आपको बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे, हम आपको थोड़े से पैसे देंगे, आप देखो कैसे उनकी जो फैमिली है जनरेशनली इम्प्रूव हो जाती है. बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये हो ही नहीं रहा, ये इंक्लूजन हो ही नहीं रहा, ये मौका उन्हें मिल ही नहीं रहा, वो हमेशा एक्सक्लूडेड ही रह रहे हैं.
So it helps us understand that it's about denying individual or group the access to opportunities and benefits which is otherwise enjoyed by the privileged counterparts in the society. So that brings us to the next question, which is the process through which individuals or groups are excluded from facilities, benefits, and opportunities that others enjoy otherwise. इसे हम क्या बोलते हैं? Social exclusion, vulnerability, poverty, or disparity. So such kind of a problem basically is known as social exclusion, which is both the problem and the cause and the result. ठीक है? Okay. Now talking about social exclusion as a cause of poverty. तो social exclusion अलग अलग aspects पे होते आए हैं. It's not just been economical status, it's also been the caste system, religion and its impact. कास्ट सिस्टम इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह रही है. हमें पता है कि हमने कई टाइम से, अब जो हम ये सोशल एक्सक्लूजन की बात कर रहे हैं, पहले ये सोशल एक्सक्लूजन सिर्फ इकोनॉमिकली बेस्ड नहीं था. इट वाज बेस्ड ऑन कास्ट, एंड वी हैव हैड दिस कास्ट सिस्टम which has been a very deep rooted problem right from the very beginning historically, which has generationally deprived people of opportunities in the society. जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्हें हमेशा से ही एजुकेशन नहीं मिलना, इक्वालिटी नहीं मिलना, इक्वल एक्सेस टू वेरियस थिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द सोसाइटी नहीं मिलना, बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिलना, इन सारी चीज़ों से डिप्राइव किया गया है. इसका रिजल्ट यही हो गया है कि ये लोग बहुत लंबे समय से अनएडुकेटेड, लो इनकम में फंसे रह गए हैं, और प्लस जो सोशल एक्सक्लूजन उसके ऊपर हुआ है वो उनको और ज़्यादा मार्जिनलाइज करता गया है, मेन अपॉर्चुनिटीज वाले एरिया से पुश आउट करता गया है. सो इसकी वजह से हमें समझ आता है कि एक अंडरलाइंड प्रॉब्लम है जिसने अंडरस्कोर्ड एक इशू, चैलेंज और थ्रेट प्रेजेंट किया है हमारे सोशल और कल्चरल फैक्टर्स के साथ गरीबी को बढ़ाने में और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी क्रिएशन में. अब आते हैं वल्नरेबिलिटी की बात करने. वल्नरेबिलिटी मैंने आपको समझा दिया है. वल्नरेबिलिटी वो स्केल है जिसपे हम मेजर करते हैं कि किसके एक्सपोजर का टुवर्ड्स द हार्म व्हेनेवर देयर इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन सबसे ज्यादा रिस्क होता है, यानी कि सबसे ज्यादा टू हार्म कौन एक्सपोज्ड होता है. तो वल्नरेबिलिटी का मतलब है हायर रिस्क फॉर स्पेसिफिक कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स, जैसे कि विडोज, हैंडीकैप्ड, ऑफ रिमेनिंग पुअर और सफरिंग मोर इन द सोसाइटी. ये भी डिपेंड करता है अगेन आपके पास एसेट्स कितने हैं, आप एजुकेटेड हो कि नहीं, हेल्थ, जॉब अपॉर्चुनिटीज. जैसे कि वल्नरेबिलिटी का फैक्टर जो है वो सोशल फैक्टर से थोड़ा डिफरेंट है. एक फैमिली जो अदरवाइज शायद सोशली एक्सक्लूडेड ना हो कैन स्टिल हैव फ्यू मेंबर्स हु आर मोर वल्नरेबल. फॉर एग्जाम्पल अगर हम विडोज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको अब तो डिफरेंट हो गया है with development happening, but पहले despite of all the development what we have
noticed is that people would not get widows would not get equal treatment being done even if they came from a good well-to-do family. So in case of risks, they would never be able to survive on their own because either they were not educated or they were not given the opportunity to work for whatever reason. तो ये क्या करता है, उनके रिस्क फैक्टर को, प्रॉब्लम्स की, गरीब रहने की, प्रॉब्लम में रहने की इंक्रीज कर देता है. So we have seen that it depends on multiple factors like the amount of money available, if you're educated or not, आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज कैसी है, आपको एक्सेस है कि नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है. रिस्क असेसमेंट जब किया जाता है तो वल्नरेबिलिटी ऑल्सो इन्वॉल्व्स असेसमेंट ऑफ हाइटेंड रिस्क पोज्ड बाय नेचुरल डिजास्टर्स एंड टेररिज्म. जैसे कि कोविड का एग्जांपल. कोविड में जिन फैमिलीज में शायद अदरवाइज इनकम थोड़ा बहुत था भी, लेकिन जो अनएडुकेटेड लोग थे, जो आपका जिनके साथ इन जनरल एक्सेस टू हेल्थ केयर हैज बीन अ चैलेंज, ये सारे कुछ लोग, स्पेसिफिक लोग हैव बीन मोर वल्नरेबल, मोर एट रिस्क and has suffered more in such kind of situations. So it, as well as evaluating the capacity of these groups to cope with such challenges, we have to understand is what is being referred to by vulnerability. अब हम बात करते हैं पावर्टी लाइन की. अब देखो, ये कोई लाइन नहीं है, इट्स नॉट अ लाइन दैट यू गो हेड एंड ड्रॉ, इट्स एन इमेजिनरी लाइन दैट हैज बीन क्रिएटेड फॉर अंडरस्टैंडिंग बाय द गवर्नमेंट. तो हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन किया, हमने बोला कि अच्छा ठीक है, एक इंसान जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा है वो गरीब है, एक इंसान जो हेल्थ केयर एक्सेस नहीं कर पा रहा है वो गरीब है, एक इंसान जिसके पास एजुकेशन का एक्सेस नहीं है वो गरीब है. ठीक है, लेकिन ऐसा कई बार ऐसा भी होता है कि कैसे समझाऊं मैं आपको, ऐसा भी कई बार होता है कि पैसे हैं पर आप फिर भी ये सब चीजें नहीं कर पा रहे हो. तो डज दैट मीन, या आप चूज कर रहे हो नहीं करना, डज दैट ऑल्सो मीन दैट यू आर अ पुअर पर्सन? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट दिस पॉवर्टी लाइन एग्जैक्टली मीन एंड वेयर डू वी ड्रॉ दैट लाइन एंड से दैट एनीवन एंड एवरीवन बिलो दिस लाइन इज absolutely poor and is poverty stricken, because there would be families which may have access to clean water and sanitation but wouldn't have regular employment or would be facing challenges with education or health care, है ना. उनको इन सब चीजों से हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पावर्टी लाइन एक ऐसी लाइन है जिसे हम कंसिडर करते हैं एक इंसान को, उसके अंडर जब उसका इनकम और कंजम्पशन जो है वो मिनिमम लेवल के नीचे चला जाता है, यानी कि कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम जो है वो बहुत ज्यादा कम है. और जब आप उसको मेजर करते हो तो आपने एक नंबर सेट किया है जनरल चीजों को असेस करके कि एक बेसिक सर्वाइवल के लिए खाना, पानी, कपड़े, ये सब बेसिक चीजों को, एक बेसिक न्यूट्रिशियस फूड अगर हम खा रहे हैं तो उसके लिए हमको 60 रुपए लगेंगे. ऐसा सब असेसमेंट करके हमने डिटरमाइन किया होता है एक लेवल, और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि जिन लोगों के पास इससे ज्यादा पैसे हैं वो अबव पॉवर्टी लाइन है, और नहीं है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है. अब इसके मेजरमेंट का मेथड क्या है? पावर्टी इज ऑफन असेस्ड बेस्ड ऑन इनकम एंड कंजम्पशन लेवल. वो हमने समझ लिया कि सिर्फ पैसे कमा लेना काफी नहीं है, उसके ऊपर कंजम्पशन लेवल भी बहुत ज्यादा मैटर करेगी. अब ये डिपेंड करता है बच्चे, जैसे कि डिपेंड करता है, ऐसे कहने का क्या मतलब है, एक इंसान जो 10,000 रुपए शहर में कमा रहा है, एक इंसान जो 10,000 रुपए गांव में कमा रहा है, उन दोनों की लिविंग स्टैंडर्ड्स डिफरेंट होंगी. गांव में अगर 3 लोगों के परिवार वाला इंसान 10,000 रुपए कमा रहा है तो शायद एक स्टिल बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकता है. बट अगर ये सेम इंसान 3 लोगों के साथ, 3 लोगों के परिवार के साथ 10,000 रुपए शहर में कमा रहा है तो उसके लिए चैलेंजिंग होगा, क्योंकि शहर ज्यादा महंगा होता है. अगर एक इंसान 1 लाख रुपए कमा रहा है इंडिया में तो उसकी तो बल्ले बल्ले है, लेकिन ऐसे इंसान को अगर आप अमेरिका में पुट कर देते हो तो फिर उसकी जो हालत है वो काफी डिफरेंट हो जाती है. तो ये बहुत सब्जेक्टिव है, टाइम से, प्लेस से रिलेटेड है, बेसिक नेसेसिटीज अक्रॉस कंट्रीज वेरी करती है और उसके ऊपर ये डिपेंडेंट होती है, प्लस टाइम पीरियड. आज अगर मुझे 50,000 रुपए सैलरी मिलती है तो मेरे लिए ठीक ठाक है, मेरा खर्चा ठीक ठाक निकल जाएगा. लेकिन ये 50,000 रुपए अगर आज से मेरे को टाइम में पीछे जाकर के 20 साल पहले, 25 साल पहले मिल रही होती, क्योंकि खर्चे बहुत कम थे, इवैल्यूएशन ऑफ चीजों की इवैल्यूएशन कम थी, महंगाई कम थी, तो ये 50,000 रुपए में मैं बहुत रिच फील करती. सो टाइम पीरियड, प्लेस, रिक्वायरमेंट, बाकी चीजों का इवैल्यूएशन, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा डिटरमाइन करती हैं कि आपकी इनकम जो है वो आपको पॉवर्टी लाइन के ऊपर रखेगी
की पावर्टी लाइन के नीचे रखेगी, ठीक है। ज्योग्राफिकल वेरिएशन भी मैंने आपको बताया कि अलग अलग जगह पे कहाँ पे किस तरीके का डेवलपमेंटल स्टेज है, क्या सोसाइटल नॉर्म्स है। मुंबई में आप घर लेने की कोशिश करोगे तो एक बेसिक छोटा सा घर का रेंट भी आपको 40,000 50,000 रुपीज देना पड़ेगा। वहीं पे वो घर अगर आप बैंगलोर या दिल्ली में लेने की कोशिश करोगे तो 40-50,000 में आपको रिलेटिवली बड़ा घर मिलेगा। ये सेम अमाउंट ऑफ मनी अगर आप टू टियर सिटीज में, भोपाल में, इंदौर में, रायपुर में, पुणे में, ऐसे इन सब जगहों पे अगर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको मच बेटर प्लेस मिलेगा। सो आप समझ रहे हो, जगह से, जोग्राफिकल डेवलपमेंट से, किस जगह पे रह रहे हो, उसका डेवलपमेंटल स्टेज क्या है, सोसाइटल नॉर्म्स क्या है, उससे भी आपकी लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा वेरी करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि यूएस में कार ओन करना लग्जरी नहीं है, इट्स अ लग्जरी इन इंडिया। इंडिया में अगर किसी के पास गाड़ी है तो वो एक लग्जरी की तरह ट्रीट किया जाता है क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। यूएस में अगर आप गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप गरीब हो, ठीक है। अगर आप गाड़ी अफोर्ड कर पा रहे हो तो मतलब ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं हो गई। तो ये हमें दिखाता है कि द जनरल लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल ऑफ यूएस, द अमेरिकन, इज हायर देन दैट ऑफ इंडियंस। सो पावर्टी लाइन एक बेंचमार्क की तरह सर्व करता है जो हमें इस प्रॉब्लम को फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर करने में हेल्प करता है। बिकॉज अंटिल अनलेस यू हैव द नंबर, अंटिल अनलेस यू हैव द मेजरमेंट, हाउ विल यू गिव द guys, once again, how will you give the adequate solution to that? आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, अगर आपके आपके पास प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास मेजरमेंट नहीं है, तो आपके पास सोल्यूशन भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इंडिया में ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट डूइंग दिस कैलकुलेशन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, वी आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ मच इनकम डू यू एग्जैक्टली नीड, बिकॉज इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। हो सकता है मुझे मेरे प्रॉपर सर्वाइवल के लिए 50,000 रुपए चाहिए हो, बट somebody else, because their requirement is less or they just want to meet the basic necessities and have no luxuries, their survival can easily, in the same place, in the same city, in the same time period, can happen in much lesser money. 50,000 की जगह वो शायद 30,000 रुपए में भी कर ले। So we have to understand that हमने एक जनरल पैरामीटर बनाया। हमने ये देखा कि एक इंसान को बेसिक नेसेसिटीज मीट करना है कि खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, घर चाहिए, सैनिटेशन, एक्सेस टू हेल्थ एंड एजुकेशन, वट एवर, और उसमें एक बेसिक नरिशमेंट के लिए कितना खाना चाहिए होगा, कितनी कैलोरीज चाहिए होंगी, उसके नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, इन सब चीज को जोड़ जाड़ करके हमने एक कंजम्पशन का लेवल निकाला कि इतने पैसे अगर किसी को दे दो तो वो अच्छे से जिंदगी जी सकता है, मतलब बड़े शौक से, बड़े अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड के साथ नहीं, लेकिन वो सर्वाइव कर सकता है एक हेल्दी इंसान रह करके, ना कि अंडर नरिश्ड रह करके या बिल्कुल जूझता हुआ प्रॉब्लम से जिंदगी के। तो हमने क्या किया, इंडिया में स्टैब्लिश किया मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, इन सारी चीजों की लिस्ट को। फिर इनका इवेल्युएशन किया, इनका रेन्यूमरेशन निकाला कि अच्छा ठीक है, एक बेसिक अमाउंट ऑफ खाना जिससे आप अंडर नरिश ना रहो, उसको अगर खरीदना है तो इतने पैसे लगेंगे। आपको साल में कम से कम 4 जोड़ी नए कपड़े, 4 जोड़ी कपड़े चाहिए तो आपको इतने पैसे लगेंगे। आपको एजुकेशन चाहिए तो इतने पैसे लगेंगे, हेल्थ केयर चाहिए तो इतने पैसे लगेंगे। बेसिक नेसेसिटीज का कितना कितना मिनिमम अमाउंट में आप सर्वाइव कर सकते हो, वो अमाउंट हमने निकाला। आप फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ प्राइसेस को फिर हमने क्या किया, इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब हर एक चीज का कन्वर्जन अमाउंट में निकाला पहले और उसको फिर पैसों में बदल दिया। जैसे कि हमने बोला कि एक इंडिविजुअल को 2100 कैलोरीज कंज्यूम करना चाहिए एक महीने में या एक दिन में, ठीक है, एक दिन में, और उस 2100 कैलोरीज को कंज्यूम करने के लिए उसको 35 रुपीज लगेंगे ताकि वो इतना चावल, इतना दाल, इतनी सब्जी, इतना रायता जो भी है वो खा सके, ठीक है। सो कैलोरी बेस्ड फॉर्मूला अपनाया हमने। करेंट मेथड हमारा पावर्टी लाइन को एस्टिमेट करने का यही है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि डिजायर्ड कैलोरी इनटेक क्या है। अब ये वेरी करती है, जो कैलोरी की आपकी रिक्वायरमेंट है पर डे की, वो रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में वेरी करेगी। क्यों? रूरल एरियाज में जिस तरीके का काम होता है, द नेचर ऑफ जॉब्स आर वेरी वेरी मैनुअली एक्सोटिक, राइट। लोग फार्मर का काम करते हैं, लोग रिक्शा चलाने का काम कर रहे होते हैं, लोग बड़ी बड़ी मशीन चला रहे हैं, सामान उठा रहे हैं, so there's like a lot of physical labor involved, so they need more calories to provide them more energy, whereas in urban areas
फिजिकल लेबर रिलेटिवली थोड़ा कम होता है, तो द अमाउंट ऑफ कैलोरीज दैट इज रिक्वायर्ड इज रिलेटिवली लेस देन कंपेयर टू द पीपल हु नीड इट इन द रूरल एरियाज, राइट। औरतों को भी अगर देखो आप, घर के काम दोनों ही जगह औरतें अगर कर रही हैं, लेकिन रूरल एरियाज में क्या होगा, वो दूर जाएंगी, लकड़ी लेकर के आएंगी, दूर जाएंगी, पानी लेकर के आएंगी, देयर वुड बी लाइक अ लॉट ऑफ वॉकिंग, लिफ्टिंग लॉट ऑफ वेट, सो दे वुड नीड मोर एनर्जी एंड मोर कैलोरीज। तो कैलोरी के सोर्सेस क्या हो गए हमारे, बेसिक खाने में पल्सेस है, ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स, मिल्क, ऑयल, शुगर, जो ओवरऑल आपके खाने को बनाता है। उसमें कैलोरी वेरिएशन जो है वो एज पे भी आती है, जेंडर पे आती है, ऑक्यूपेशन पे आती है, और किस आप एरिया में रह रहे हो उस पे भी आती है। तो हमने समझा कि 2100 कैलोरीज इज रिक्वायर्ड बाय अ ग्रोन एडल्ट इन एन अर्बन एरिया, whereas the same thing is required for 2400 calories for the same person in a rural area because of the difference in the labor that they would be performing in these two different places, ठीक है। So the monetary cost of calorie based requirement is periodically adjusted इस चीज को देखने के लिए, यानी कि अगर मेरे को 2100 कैलोरी चाहिए, मैं शहर में रहती हूँ, तो मुझे 1 bowl ऑफ राइस, 1 bowl ऑफ दाल, 1 वेजिटेबल, सर्टन अमाउंट ऑफ शुगर, सर्टन अमाउंट ऑफ ऑयल चाहिए होगा। फिर मैं क्या करूंगी, ये 1 bowl राइस जो है मुझे 6 रुपए की मिलेगी, 1 bowl दाल जो है मुझे 2 रुपए की मिलेगी, द वेजिटेबल विल कॉस्ट मी अनदर 4 रुपीज, सो बेसिकली 13 रुपीज हो गया, और 2 रुपए का चीनी और तेल मान लेते हैं, यानी कि 15 से 16 रुपए, 17 रुपए मुझे चाहिए होंगे रोज के उतने कैलोरी कंजम्पशन के लिए एक शहर में पर डे। सो इस बेसिस पे हमने प्राइस निकाला, बट ये प्राइस जो है ये हर कुछ दिन पे रिवाइज करते रहना पड़ता है, क्योंकि जो कमोडिटीज है उनके भी दाम जो है वो वेरी करते हैं। प्राइसेस जो है राइस की, दाल की बढ़ती घटती रहती है, तो उसके हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी मनी में, इवन फॉर द कैलोरीज दैट यू आर कंज्यूमिंग, विल वेरी। Okay, so the energy of the nutritional level of food is expressed in the form of A, milk per day, or B, calories per day. जो न्यूट्रिशियस फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं वो किस बेसिस पे निकाल रहे हैं वो बताना है। मिल्क पर डे और कैलोरीज पर डे। सो बच्चे हमने देख लिया है कि मिल्क पर डे तो वुडंट मेक सेंस एट ऑल, इट इज एक्चुअली कैलोरीज पर डे जिसके बेसिस पे हम डिटर्मिनेशन करते हैं। सो द करेक्ट आंसर वुड बी कैलोरीज पर डे, 2100 for people in urban areas and 2400 for people in rural areas। और ये एनर्जी डेंसिटी देती है हमें, और ये वेरी करता रहता है टाइम के साथ, वक्त के साथ हम इसे बदलते जाते हैं, ठीक है। नाउ विद दैट क्विक रिमाइंडर, अभी 10th में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होंगे, यू वुड हैव योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स, सो एंड दीज प्रैक्टिकल एग्जाम्स विल ऑल्सो बी असेस्ड फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल। तो अब इसके जब वेटेज काउंट होने वाली है, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी प्रिपेयर्ड दैट गोइंग फॉरवर्ड व्हेन वी मूव टू द न्यू क्लास, हमारे पास इनफ प्रैक्टिस है, आइडिया है प्रैक्टिकल का, सब कुछ हो रहा है। तो ये आप क्या करोगे, आपके लिए है हमारा वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस, आपको सिर्फ इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, यू कैन प्रैक्टिस ऑल योर प्रैक्टिकल्स एज मच एज यू वांट, प्रिस्क्राइब्ड एज पर द सिलेबस। स्कूल में प्रैक्टिस के अलावा भी आप कभी घर में करना चाहते हो, एग्जाम के पहले रिवाइज करना चाहते हो, बिकॉज प्रैक्टिकल इज ऑल अबाउट लर्निंग बाय डूइंग, और वो सिर्फ थोड़ा बहुत थ्योरी में पढ़ करके इट्स नॉट द सेम थिंग, राइट। तो आप आराम से कर सकते हो, एंड देन ऑफ कोर्स द मैजिक ऑफ इम्बाइब लेंस वी हैव ऑलरेडी सीन। Now talking about the poverty line in India which is based on income, तो कैलकुलेशन किया हमने और 2011 और 12 के हिसाब से हमने इनकम रिक्वायरमेंट्स निकाले, तो हमें ये समझ आया कि किसी भी इंसान को इतने फूड, बेसिक क्लोथ्स, शेल्टर, ये सारे नेसेसिटीज मीट अगर करने हैं,
तो लाइन कहाँ पे सेट हुई, 816 रुपीज पर मंथ फॉर रूरल एरियाज एंड 1000 रुपीज फॉर अर्बन एरियाज। दिस इज 12 ईयर्स बैक, ठीक है, 13 ईयर्स बैक। तो अब 2011 में ये माना गया कि अगर एक इंसान बेसिक नेसेसिटीज को मीट करते हुए अपने कैलोरी की कंजम्पशन को ध्यान में रखते हुए अभी सर्वाइवल करना चाहता है तो गांव में उसे कम से कम 800 रुपए और शहर में उसे कम से कम 1000 रुपए कमा रहना होना चाहिए। शहर की वैल्यू ज्यादा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कैलोरीज कम है, वो इसलिए है क्योंकि शहरों में महंगाई ज्यादा होती है, लिविंग इज मोर कॉस्टली। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक फैमिली है रूरल एरिया में 5 जनों की, उनका इनकम 4080 रुपए है, तो दिस फैमिली विल बी कंसिडर्ड बिलो द पॉवर्टी लाइन बिकॉज व्हेन यू डिवाइडेड इट बाय 5 the average income per person will be what, 200 something rupees, is it? 5 लोगों में 4000 रुपए को अगर आप डिवाइड कर रहे हो, सॉरी नॉट 200, 800 हो जाएगा। डिवाइड करके देखते हैं, 4080 को हमें 5 से करना है, तो पहले 40 जो है वो 8 टाइम्स में चला जाएगा। So 813 if I'm not wrong, 16 ही आएगा, sorry 816 आएगा exactly. So they are exactly making it to the poverty line, ठीक है। वैसे ही अर्बन फैमिली में जो है अगर 5000 है इनकम, यानी कि हर बंदे पे 1000 रुपए है हमारे पास, और वो भी अगर बच्चे हैं तो थोड़ा सा और कम हो जाएगा। सो वी सी दैट पावर्टी लाइन जो है यहाँ पे वो उसके अबव आ जाते हैं, वो अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स मीट कर ले रहे हैं। अब ये पावर्टी एस्टिमेशन, ये सारा सर्वे, ये सारी स्टडीज हम कहाँ से कर रहे हैं, ये हम कर पा रहे हैं NSSO की मदद से, विच इज द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। द पावर्टी लाइन इन इंडिया इज डिटरमाइंड थ्रू पीरियोडिक सैंपल सर्वेज, कि अभी महंगाई कितनी है, अभी रिक्वायरमेंट कितनी है, अभी फूड रिक्वायरमेंट कितनी है, इसको मीट करने के लिए कितने पैसे रूरल एरिया में चाहिए होंगे। तो आपको हर थोड़े दिन पे, क्योंकि इन्फ्लेशन होता रहता है, महंगाई बढ़ती रहती है, लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होता रहता है, तो इन सारी स्टडीज को हर 5 साल पे पीरियोडिकली परफॉर्म किया जाता है बाई NSSO। और ये सारा डेटा जो हमारे पास है वो हमें NSSO से मिलता है। इसे 1950 में सेट किया गया था ऐसे लार्ज स्केल सर्वेस को करने के लिए। तो आपको बताना है कि NSSO का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एंड करेक्ट आंसर इज एक्चुअली ए और डी जो है वो सेम ही है। तो अगर आपने ए या डी दोनों में कंफ्यूजन पाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ही सही है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ पॉवर्टी लाइन बाय वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। जैसे हम इंटरनली सेट करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में, सिमिलरली वर्ल्ड बैंक ने भी स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनली सेट किए हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन से देश, जब हम बोलते हैं ना ये देश गरीब है, ये देश सही है, तो कुछ तो स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि हर एक कंट्री की वेरिएशन अलग है। डेवलप्ड नेशन में आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफी हाई है, तो वहाँ महंगाई ज्यादा होगी, वहाँ पे सर्वाइवल के में आप 1000 रुपए में सर्वाइव नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको 10,000 रुपए चाहिए टू बी अबव पॉवर्टी लाइन। तो हर एक देश का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स ज्योग्राफी, डिपेंडिंग अपॉन इट्स डेवलपमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम पीरियड। तो वर्ल्ड बैंक ने भी एक यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन फॉर अक्रॉस द वर्ल्ड निकाली कि पूरी दुनिया में अगर हम एवरेज लेके चल रहे हैं और आपके पास इतने पैसे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप सरवाइव कर सकते हो, यू कैन गेट थ्रू, ठीक है। तो स्टैंडर्ड अमाउंट जो सेट किया उन्होंने, वो बोला कि $1.9 पर पर्सन अगर पर डे अर्न कर रहा है तो उसकी परचेजिंग पावर पैरिटी मेंटेन रहेगी एज ऑफ 2011, ठीक है। यानी कि अगर लगभग $2 विच वुड बी इन टूडेज डेट, आई थिंक अगर 80 रुपीज भी मानकर चलो या 85 रुपीज मानकर चलो, तो 160-170 रुपए अगर आप रोज एक इंसान अर्न कर रहा है, लगभग 200 रुपए, तो ऐसे इंसान को हम थोड़ा ऊपर रख सकते हैं, आपका मेजरिंग स्टैंडर्ड ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। वो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं एग्जैक्टली एंड करेगा।
ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ डेटा है जो कि है आपका 93, 2004 टू 2005, 2009 टू 2010, 2011 टू 2012। पावर्टी रेशियो क्या है रूरल अर्बन एरियाज में टोटल, एंड नंबर ऑफ पुअर पीपल इन मिलियंस भी हमारे गिवन है। ऐसे सारे डेटा को आप ध्यान से देख लीजिएगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो ऐसे सारे जगहों से आती हैं। तो हमें समझ आया कि वर्ल्ड बैंक ने ये डिटेल दे दिया और उसी के बेसिस पे हम असेस करते हैं कि ऑन एन एवरेज पर कैपिटा इनकम कितनी है, पर पर्सन इनकम कितनी है पर डे। और इंडिया जो है वो थोड़ा अंडर डेवलप में ही फॉल करता है, हमारा इनकम इतना नहीं है जो स्टैंडर्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड का सेट किया गया है। Now, poverty estimates की बात की जाए तो we have seen that because of our policies, the way we are moving forward, the way we are trying to educate more and more people with, the way we are acting up with certain schemes and programs and policies, हमारा जो रेशो है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर रहा है। 45% जो 93 से 94 में था, जो यहाँ पे हमने टेबल में भी देखा कि टोटल हमारा 45 से आप देखो हर कुछ दिनों पे डिक्रीज करता गया है, अब ये हाफ हो गया है 22%। हालांकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, आवर पॉपुलेशन हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड। सो बिकॉज आवर पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड, जो पहले छोटे नंबर का 45% था वो शायद उससे बड़ा अभी इतने बड़े 1.4 बिलियन का 22% हो जाए। बट डिस्पाइट ऑफ दैट, इन परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ रेशियो, इन टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन, द अमाउंट ऑफ पीपल अंडर पॉवर्टी लाइन हैज ओनली डिक्रीज, विच इज शोइंग अस दैट हमारा प्रोजेक्शन जो है वो बेटर हो रहा है, हमारी मेहनत जो है वो साकार हो रही है, हमारे पॉलिसीज सही बन रहे हैं और हम सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हमें बस फटाफट अब इसे नंबर वाइज भी डिक्रीज करना है। तो in current trend countries, the percentage of people in poverty may fall below 20% in the coming years. जहाँ पे हम 93 से 94 में 45% में थे, अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम 20% से भी नीचे चले जाएंगे अगर इसी तरीके से हम बढ़ोतरी करते गए तो। Impact on poverty क्या है? The number of poor individuals have decreased from 407 million in 2004 to 2005 to 270 million in 2011, which means it has dropped half. ठीक है, एंड एक एनुअल डिक्लाइन हमने 2.2% का हर साल देखा है। So poverty ratios in India have significantly increased from about 37.2% in 1993 to 1994 to 45% in 2004 to 2005. Is this statement true or is this statement false? The poverty ratio in India has significantly increased, जो कि 37% था 93 में, to 45% in 2004 and 2005. Is the statement true or is the statement false? तो बच्चे अभी हम इतनी देर से यही डिस्कस कर रहे थे कि कॉन्स्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली 2.2% का डिक्लाइन आता गया है। तो जब डिक्लाइन आया है तो इंक्रीज तो कतई नहीं होगा, उल्टा भले बोल दो कि 45 से 37% पे आ गया था, नॉट दी अदर वे राउंड। ठीक है, अब पावर्टी इन वल्नरेबल ग्रुप्स की बात करें तो हमें पता है कि वल्नरेबल ग्रुप्स जो है वो हमेशा से ज़्यादा एक्सपोज्ड है, ज़्यादा एट हायर एट रिस्क है। तो उनके लिए पावर्टी कैसे दिखती है और कैसे हम उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, व्हाट आर द मेजर्स दैट वी आर टेकिंग। सो जो प्रपोर्शन है हमारा बिलो पावर्टी लाइंस का, वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली अमंग्स डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज जो है वो वेरी करता है। यानी कि पीपल ऑफ हायर कास्ट में आप प्रॉब्लम ऑफ पावर्टी कम देखोगे, पीपल ऑफ लोअर कास्ट में थोड़ी सी ज़्यादा देखोगे। जैसे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को हम वल्नरेबल मानकर चलते हैं बिकॉज ऑफ जनरेशनल हिस्टोरिकल ईयर्स ऑल टुगेदर जो डोमिनेशन हुई है उसकी वजह से दे हैव बीन कॉन्स्टेंटली सफरिंग, और वो अब वहाँ पे ला करके फंसा दिए गए हैं जहाँ पे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट वो एक पावर्टी वाले हिस्से में आ चुके हैं। जैसे कि अगर हम स्टडी करते हैं तो शेड्यूल ट्राइब्स में बहुत हाई पावर्टी हमें वो मिलता है। इसका हमने फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म में भी देखा है कि उनसे जो अपॉर्चुनिटी थी वो छीन ली गई थी। कास्ट सिस्टम और ये जो हमारा सोशल सिस्टम है उसकी वजह से फर्दर प्रॉब्लम हुआ है। तो हर 100 मेंबर जो किसी भी ग्रुप में गरीब हैं, आप उनमें जब जाकर स्टडी करोगे तो आप देखोगे 43 आउट ऑफ देम एक्चुअली बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब्स, राइट। वैसे ही शेड्यूल कास्ट और रूरल एग्रीकल्चरल लेबरर के साथ भी सेम चीज होती है, हाई पावर्टी रेट्स होते हैं। 29%, 34% respectively out of all the members of the entire poor section belong to scheduled caste and the rural agricultural labor. इनके साथ क्या हो जा रहा है, डबल डिसएडवांटेज हो रहा है गांव में, खास करके लैंडलेस है, कैजुअल वेज वर्कर तो है, उसके ऊपर से कई बार ये अक्सर जो है पाए जाते हैं ऑफ शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट, क्योंकि पढ़ाई लिखाई इनको बचपन में करने नहीं दी गई, जनरेशनली करने नहीं दी गई, फैमिली डेवलप नहीं कर पाई, गरीब थी, गरीब रह गई, सोशली एक्सक्लूड कर दी गई, तो ये आगे उससे बढ़ ही नहीं पाए। तो गरीब तो रह ही गए, ऊपर से सोशल एक्सक्लूजन, कास्ट और आपका जनरल सोशल आइडेंटिफिकेशन का भी इनके ऊपर
होता रहे क्या। इस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई और ये फंस गए और डबल डिसएडवांटेज जो है अब उनको वो झेलना पड़ रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाट दे हैव टू सफर नाउ। सो वल्नरेबल इकोनॉमिक ग्रुप्स जो है वो इंक्लूड करता है रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउस और अर्बन कैजुअल लेबर हाउस। अर्बन एरियाज में 34% कैजुअल वर्कर्स जो है वो पॉवर्टी लाइन के बिलो बिलोंग करते हैं। रूरल एरियाज में 34% कैजुअल लेबर्स हैं जो आपका फार्म हाउस होल्ड्स को देखते हैं, और 29% शेड्यूल्ड कास्ट है who are living in poverty. Some recent studies show that with the exception of scheduled tribes and households, the other three groups experienced a decline in poverty during 1990s. तो scheduled tribes suffer कर रही हैं, लेकिन casual workers, scheduled caste, इन सब की जो आपकी कहीं ना कहीं सिनारियो है वो धीरे धीरे लेट 90s से थोड़ी बेटर होने लग गई है, क्योंकि लोग आहिस्ता आहिस्ता करके एडुकेट हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है, अवेयरनेस आ रही है, सो पीपल आर ट्राइंग टू ऑल्सो फाइट प्रॉब्लम्स लाइक सोशल एक्सक्लूजन. Now, poverty, of course, affects a lot of people, but the interesting fact is that it's not about that it is just affecting the family. गरीबों में भी कुछ लोग ज्यादा गरीब होते हैं, यानी कि इवन व्हेन पीपल आर पुअर, अ फैमिली इज वल्नरेबल, few members of this family would be even more further more vulnerable. यानी कि वो उस पूरे परिवार में ज्यादा वल्नरेबल होते हैं जो ऑलरेडी वल्नरेबल है। जैसे कि एक अगर परिवार ले लो, उसमें जो बुजुर्ग होंगे, जो महिलाएं होंगी, जो अनएडुकेटेड होंगी, जो बच्चे होंगे, वो ज्यादा एक्सपोज होंगे टू सच प्रॉब्लम्स ऑफ बीइंग पुअरर। अगर किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ कि ज्यादा गरीब हो जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर वाइफ की डेथ होती है तो हस्बैंड के साथ ऐसा नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि इन दीज केसेस वुमेन, एल्डरली इंडिविजुअल्स, फीमेल इन्फेंट्स, इनको इक्वल एक्सेस नहीं दिया जाता है, या ये ज्यादा डिसएडवांटेज पे होते हैं, ज्यादा पिछड़े होते हैं, तो ये ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो वल्नरेबल ग्रुप्स में भी ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं ये ग्रुप्स। ठीक है, it brings us to the next question. Which of the following are the most vulnerable groups to poverty? SCs and STs, urban factory owners, rural land owners, or urban households? Which of the following are the most vulnerable groups? जब poverty की बात आती है, सबसे ज्यादा vulnerable groups में कौन से लोग जो है वो काउंट होते हैं? तो बच्चे SCs एंड STs हमने पढ़ा है, अभी हमने देखा है कि इट इज द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब जिन्हें हम इन वल्नरेबल ग्रुप्स में काउंट करते हैं। अब ये जो डिस्पैरिटी हम देख रहे थे, हमने देखा कि एक परिवार में ही वेरिएशन आती है। ठीक है, एक शहर में, शहर से शहर में वेरिएशन आती है, वैसे ही स्टेट टू स्टेट में भी वेरिएशन आती है। जो स्टेट ज्यादा अर्बनाइज्ड है, ज्यादा डेवलप्ड है, वहां पे जो है आपकी लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होगी, पर महंगाई ज्यादा होगी। तो जिन लोगों के पास कम पैसे हैं वो वहां पे ज्यादा डिफिकल्टी के साथ सर्वाइव करेंगे रिलेटिवली टू द स्टेट्स जहाँ पे ऐसा नहीं है, जहाँ पे बेटर आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज है, बेटर जो है अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दी गई हैं। ठीक है, तो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज हम देखेंगे हर एक स्टेट में, जैसे कि हर एक एरिया में, हर एक फैमिली में सेम तरीके से गरीबी नहीं होती है, वैसे ही हर एक स्टेट का सिनेरियो सेम नहीं है। कुछ स्टेट्स हैं हमारे जो काफी ज्यादा डेवलप्ड है, और कुछ स्टेट्स हैं हमारे जो बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखते हो पॉवर्टी वाली चीज को, तो हम देख सकते हैं बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये काफी ज्यादा हाई है। महाराष्ट्र भी ऊंचा ही है, कर्नाटका भी ऊंचा ही है। ठीक है, वेयर एज आपका केरला जो है वो सबसे कम है, वहां पे सबसे कम गरीबी है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इन सब जगहों पे सबसे कम गरीबी है, क्योंकि बेटर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज, बेटर रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगों को मिल जा रही है, बेटर एक्सपोजर मिल जा रहा है, वल्नरेबिलिटी कम हो जा रही है, सोशल एक्सक्लूजन की प्रॉब्लम कम हो जा रही है, फॉर ऑल ऑफ दोज रीजंस। बट ऑफकोर्स वी हैव नोटिस जो हमारे ओवरऑल स्टेट का, पूरे नेशन का कहीं ना कहीं डिक्लाइन है सिंस 1970s। पॉवर्टी में आता गया है, पॉवर्टी रिड्यूस होती गई है, ऐसा नहीं कि इंक्रीज हुआ है। रीसेंट एस्टिमेट्स दिखाते हैं कि MP, असम, यूपी, बिहार, उड़ीसा, ये वो कंट्रीज है जिनका नेशनल एवरेज जो है हमारा, जो कि 21.9 है, उससे भी कई ज्यादा है। ये उससे भी कई ज्यादा ऊपर है ये स्टेट्स, बट देयर आर स्टेट्स जो नीचे है। बिहार और उड़ीसा बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करते हैं, 30% से भी ऊपर यहाँ पे प्रॉब्लम है।
ठीक है, असम में भी फॉर दैट मैटर। बोथ रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी नोटेबली देखी जाती है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, जो टॉप के पुअर स्टेट्स है इन जगहों पे। ठीक है, वहीं पे लेकिन हमने देखा है कि कई सारे स्टेट्स जैसे कि केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया है पॉवर्टी में, काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। अब अलग अलग स्टेट्स की कहानी अगर देखें कि व्हाट हैज हेल्प्ड, तो जैसे पंजाब हरियाणा में बच्चे हैविंग अ वेरी फर्टाइल लैंड, इवन द फार्मर्स हैव बीन एबल टू डू अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन। तो हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ की वजह से प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोसेसिंग, यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों ही बहुत ज्यादा प्रॉस्परस रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉस्पर किया है, बहुत ज्यादा ग्रो किया है फॉर पंजाब एंड हरियाणा। केरला जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे फोकस करता है, यानी कि बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज। सो बेटर रिसोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मींस बेटर इनकम, लोग ज्यादा अच्छे से अर्न कर पा रहे हैं। वेस्ट बंगाल ने लैंड रिफॉर्मेशन की ताकि ये लैंडलेस लेबरर्स, बड़े लैंड ओनर्स, छोटे लैंड ओनर्स, इनके बीच में थोड़ा साझगार ठीक से चलता रहे, इनकी प्रॉब्लम जो है वो बेटर तरीके से डील होती रहे। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे बहुत काम किया। तो फूड सिक्योरिटी में हमने पढ़ा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि सस्ते में लोगों तक खाना पहुंचा पाना, सब्सिडीज देना। इसकी वजह से अगर लोगों के पास पैसे कम भी है तो वो बेसिक फैसिलिटीज पे ज्यादा लैक नहीं करते हैं। ठीक है, एचडीआर होता है हमारा हेड काउंट रेशियो, एचसीआर एक्चुअली। ये वो प्रोपोर्शन दिखाता है ऑफ द पॉपुलेशन दैट एग्जिस्ट्स और लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन। तो आपका हेड काउंट रेशियो जो है वो हमें पता चलता है कि कितने लोग, जो एचसीआर यहाँ पे हम देख रहे थे, है ना, ये एचसीआर हम देख रहे थे कि कितना हेड काउंट रेशियो है, ये हमें बताता है कि कितने लोग जो है आउट ऑफ द टोटल परसेंटेजेस ऑफ द पॉपुलेशन फॉल करते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन में। नाउ ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो की बात की जाए तो ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो हैज सीन सब्सटैंशियल रिडक्शंस। द proportion of people living in extreme economic poverty as defined by the World Bank, that is less than 1.9 dollars per day, dropped from 36% in 1990 to 10% in 2015. However, रीजनल डिस्पैरिटीज इन पॉवर्टी रिडक्शंस जो है वो काफी सिग्निफिकेंट रहे हैं। चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में हमने देखा है कि उनका जो रिडक्शन है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहा है, काफी बड़ा रहा है, काफी ह्यूज रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट की वजह से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। जापान की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। जापान में ऐसा है कि कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है उनके पास, डिस्पाइट ऑफ दैट वो बहुत वेल डेवलप्ड नेशन है, बिकॉज अपने ह्यूमन रिसोर्स को उन्होंने बहुत डेवलप किया है और उस पर बहुत अच्छे से टैप इन किया है ग्रोथ करने के लिए। तो नेचुरल रिसोर्स हो ना हो, आप फिर भी बहुत अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हो, एंड दैट हैज एक्चुअली बीन देयर प्राइमरी फोकस। So China and Southeast Asian countries, they have experienced huge reduction in poverty. China हमसे poverty में आगे था कुछ 50-60 साल पहले, और आज वो one of the most high GDP generate करने वाला country है। So हमें यहाँ से पता चलता है कि जब आप production बढ़ा देते हो, human resources development पे focus करते हो, ऐसी सारी चीजें करते हो, तो आप global poverty scenario में काफी better हो जाते हो। So China, for example, reduced its poverty rate from 88.3% in 1981 to 0.6% in 2019. South Asian countries including India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh and Bhutan, इन्होंने भी विटनेस किया है substantial poverty decline from 34% to 15.2% in 2014. सब सहारन अफ्रीकन, मतलब नॉर्मली अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो हमने ये देखा है कि ग्लोबल लेवल पे जो भी गरीबी है वो कम हुई है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू प्लेसेस लाइक द सब सहारन जगह जो उग जाती है, वहां पे रिडक्शन थोड़ा स्लो हुआ है। कुछ जगह बढ़ा भी है, जैसे जो कम्युनिस्ट नेशंस है लाइक रशिया, वहां ऑन द कॉन्ट्ररी इंक्रीज हो गया। लेकिन ओवरऑल जहां पे रिडक्शन बहुत फास्ट हुआ है, देखो 1981 में 88.3% पॉवर्टी रेट थी चाइना की, यानी कि 80% से ज्यादा लोग बचे, लगभग 90% सब गरीब थे। आप देखो ये रेट इतना ज्यादा हो गया है कि आप 1% भी लोग वहां पे गरीब नहीं रह गए। सो दैट इज हाउ फास्ट एंड एक्यूरेटली दे हैव वर्क टुवर्ड्स इम्प्रूविंग दिस। इन जनरल साउथ एशियन कंट्रीज में भी चेंज आया है। सब सहारन में रिडक्शन थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी हुआ है। 51% जो था आपका 2005 में, उससे ड्रॉप हो करके 40.2% पे आ चुका है।
ठीक है. Now Latin America also saw a decline in the poverty rate from 10% in 2005 to 4% in 2018. In contrast, poverty resurfaced, जैसे मैंने आपको बताया, in some countries like रशिया जैसे देश में हमने देखा है कि पावर्टी रिसर्फेस हो गया है. इसमें टाइप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कोर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. किस तरीके की सरकार है उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और वो भी बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करती है. तो जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है, बहुत ज़्यादा सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट इनकी पॉलिसीज़ नहीं होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं गरीबी में अफेक्ट करती हैं. सो द इंटरनेशनल पावर्टी लाइन जो है वो $1.9 पर डे बनाया गया है, यूज्ड टू डिफाइन पावर्टी इन वेरियस कंट्रीज. ये सारा डेटा जो हम देख रहे हैं अदरवाइज वो उस बेसिस पे ही डिज़ाइन किया गया है. The United Nations has set sustainable development goals aiming to end all types of poverty by 2030. ठीक है. So now here comes the next question. The global poverty scenario varies from one region to another. Is this statement true or is this statement false? क्या ये statement true है या ये statement false है? जो ग्लोबल पावर्टी सिनेरियो है वो वेरी करती है एक रीजन से दूसरे रीजन में. Is this true or is this false? So we've seen that just within the same city, central areas would be more expensive than the outskirts of the city or the village. एक कंट्री में अलग अलग स्टेट्स में जहाँ पे केरला इतना हाई है, इतना बेटर है, वहीं पे बिहार में पावर्टी जो है वो बहुत हाई है. तो हमें समझ आ रहा है एक जगह पे इतनी वेरिएशन है. यूएस का इतना डिफरेंट है, इंडिया का बहुत डिफरेंट है. तो ग्लोबल पावर्टी सिनेरियो तो ऑफकोर्स वेरी करेगी. जब एक देश में इतनी ज़्यादा चेंजेस हैं, इतनी ज़्यादा शिफ्ट्स हैं, तो अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग नेशंस में तो नेचुरली ये शिफ्ट ज़्यादा आएगा ही. सो एज डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक, the proportion of people in different countries living in great poverty is those who can spend less than $1.9 per day. It has fallen from 36% to 1990 to 10% in 2015. There has been an overall reduction in global poverty, लेकिन of course marked by significant regional differences. Now, what are the various causes of poverty? आखिर वो क्या चीजें हैं जो पावर्टी को लीड करती हैं, पावर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. बच्चे, जब हमें आजादी मिली, आजादी मिलने के पहले ही जमींदारी सिस्टम बहुत ज्यादा स्टैब्लिश हो चुकी थी. इस जमींदारी सिस्टम में ब्रिटिशर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया था. उन्होंने बेसिकली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इंडियन जमींदार लैंडलॉर्ड्स के फॉर्म में लगा दिया था. ये कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी और वो चाहते थे कि उनका जो राइट है, उनकी जो रिचेस है वो कम ना हो. अब ऐसा करने के लिए वो ब्रिटिशर्स को सर्व करने को रेडी थे. ब्रिटिशर्स ने भी बोला कि ठीक है, आप हमें टैक्स भी पे करो, आप बाकी लोगों से भी टैक्स कलेक्शन करो और उसके हिसाब से आप जो है जैसे भी जाना चाहते हो, यू गो अहेड, यू हैव द लैंड. ये यहाँ से लेके वहां तक जितनी जमीन दिख रही है वो मेरी है, ऐसा हिसाब कर लो, आप बन जाओ जमींदार. लेकिन जब आज़ादी मिली हमें, तो उसके बाद हमने देखा कि ट्रेडिशनली लैंड रिफॉर्म्स किए गए इन जमींदारी सिस्टम को हटाने के लिए, लेकिन ये हर जगह बहुत एडिक्वेटली पेनिट्रेट नहीं हुआ. गांव तक, एक एक इंडिविजुअल तक ये नहीं पहुंचा उस तरीके से जैसे पहुंचना चाहिए था. सो लैंड रिफॉर्म्स कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, बिकॉज ऑफ दैट लोग जो है वो गरीब रह गए. दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर हमारा कॉलोनियल पास्ट हो जाता है ब्रिटिश रूल. ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स सारा सामान अपना ब्रिटेन से लेकर के आते थे. यहाँ पे लोगों को प्रोडक्शन कुछ करने नहीं देते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने नहीं देते थे. तो जब वो गए, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्रॉपरली हो चुका था, इंडिया उस गेम में बहुत पीछे रह गया था, बिकॉज हमें अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं थी फुल फ्लैश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करने की. सो वाइल द एंटायर वर्ल्ड वाज बूमिंग विद ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, वी वर स्ट्रगलिंग टू फाइंड एंड सेट आवर फुट एंड बेसिकली ग्रो विथ द फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेहतर करने की स्ट्रगल में लगे हुए थे उस वक्त. ठीक है. प्लस ब्रिटिश रूल ने पूरा ड्रेन कर दिया, इकोनॉमिक ड्रेन कर दिया. जितने पैसे यहाँ पे बनते थे, तो उन्होंने ये भी किया कि इंडिया के बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया. द रीजन फॉर देम बीइंग हियर वाज दैट इंडिया इज ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. दे सेड दैट दीज नेचुरल रिसोर्सेज काइंड ऑफ बिलोंग टू अस. ठीक है, हम एक्सप्लॉइट करेंगे, हम प्लांटेशन करेंगे, इंडिगो ग्रो करेंगे, चाय ग्रो करेंगे,
कॉटन ग्रो करेंगे, इन सारी चीज़ों में ट्रेड करेंगे, और ये सारी चीज़ों के ट्रेड से जो प्रॉफिट बनाएंगे वो इंडिया को कुछ भी नहीं देंगे, वो ले जाएंगे इंग्लैंड, हम अपने ऊपर खर्च करेंगे, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं करेंगे। सो व्हेन दे लेफ्ट अस, इट्स लाइक दैट दे हैड कम्प्लीटली, हम बिल्कुल बैफल्ड रह गए थे, हम बिल्कुल जो है उथल पुथल करके हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को रख दिया गया था, हमें पूरी तरीके से गरीब बना दिया गया था, लूट लिया गया था, टैक्सेस पे करवा करवा करके, कोई डेवलपमेंट नहीं करा के, सारे प्रॉफिट अपने पास बना करके, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज जो है वो ऑफ कोर्स हैव बीन एक्सप्लॉयटेड बाय देम, उन्होंने भर भर के एक्सप्लॉयट किया है, तो दैट हैज बीन अ ह्यूज चैलेंज एंड अ प्रॉब्लम। एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्री हैज बीन नेग्लेक्टेड, सो वी स्टार्टेड वेरी लेट, हमने शुरू ही बहुत लेट किया है। आज भी हमारी मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एसोसिएटेड है, वी डोंट हैव एनफ अपॉर्चुनिटीज। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, ज्यादातर लोग जो है जिनकी जरूरत भी नहीं है एग्रीकल्चर फील्ड में, वो फार्मिंग में ही काम कर रहे हैं। तो अब जहां पे जरूरत ही नहीं है वहां पे जबरदस्ती काम करोगे तो इनफ इनकम तो जनरेट नहीं होगी, काम उतना ही होगा, इनकम उतनी ही जनरेट होगी, चाहे 10 लोग करो या 100 लोग करो। तो वो जो बचे हुए एक्स्ट्रा लोग हैं वो कहीं और जाकर काम करके और पैसे कमा सकते हैं, बट देयर इज नॉट इनफ अपॉर्चुनिटीज फॉर देम टू बी एबल टू डू सो। सो दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल स्लाइड फॉर यू। आपको 5 नंबर का आंसर लिखने आता है, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी या उस चीज का मेजर बताने आता है, तो स्लाइड की मदद से आप इन सारी चीजों को डिटेल में यहाँ पे बता सकते हो। Low rate of economic growth has been a problem because we have been slowly industrializing, we have been slowly moving on with the trading. तो धीरे धीरे ऐसा कर करके हम वहाँ पहुँच रहे हैं, but we have not reached there completely well enough. So it has been slow, it has been stagnant. Agricultural growth हमारा stagnant रहा है। एक बहुत बड़ा challenge agricultural growth में ये भी आता है कि सब जो है वो regular गेहूं, चावल, दाल, आलू यही grow कर रहे हैं। Everyone wants to grow the regular crops. These crops are not very high valued crops. अगर हम एग्रीकल्चर देखो, इंडिया इज ब्लेस्ड विद अ लैंड एंड अ वेदर विच इज ग्रेट इन वेरिएशन एंड विच एवरीवन डिजायर्स फॉर, वेरी आइडियलिस्टिक फॉर ग्रोथ ऑफ स्पाइसेस एंड कॉटन एंड वेरियस काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एक्सोटिक मटीरियल्स एंड यू नो पेट्रो, मतलब कुछ ऐसे हाई फ्यूल क्रॉप्स भी होते हैं जो जिनकी वैल्यू वर्थ बहुत ज्यादा होती है, एंड वी आर ब्लेस्ड विद द सॉइल, वी आर ब्लेस्ड विद द वेदर दैट वी कैन ग्रो दीज थिंग्स, बट वी आर नॉट ग्रोइंग दीज थिंग्स विच इज वेरी हाई इन डिमांड आउटसाइड। वी आर स्टिकिंग टू वेरी ट्रेडिशनल ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स which is again leading to same field में जो yield निकल कर आ रहा है very very less, which can otherwise be actually very very high. And of course rural indebtedness, तो रूरल एरियाज में हमने देखा है कि गरीबी की प्रॉब्लम, फार्मिंग के कारण बहुत ज़्यादा रेंट लेने की प्रॉब्लम, रेंट जो है इनफॉर्मल सेक्टर से लेकर के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट का बर्डन ले रहे हैं लोग, डेट ट्रैप में फंस जा रहे हैं, गरीब ही रह जा रहे हैं, अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे। अब हम एंटी पावर्टी मेजर्स भी पढ़ेंगे। जब हमने पढ़ा है कि भैया गरीबी इतनी ज्यादा है तो इसके साथ इस गरीबी को दूर कैसे कर सकते हैं, ये मेजर कैसे डिस्कस नहीं करेंगे, मेजर भी डिस्कस करना है। तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज वन ह्यूज फैक्टर विच कैन लीड टू दिस कि आप भैया जो है ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो, ऐसे जॉब्स करो जो ज्यादा पैसे जनरेट करें और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी ऑप्शंस क्रिएट करें। एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स हमारे दूसरे, ठीक है। तो हमने बात की थी ना कि गवर्नमेंट 2 स्टेप्स ले रही है, एक इकोनॉमिक ग्रोथ भी करा रही है, दूसरी एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स भी चला रही है, हमने क्वेश्चन में देखा था। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे। आप स्पेसिफिक स्टेप्स की बात करते हैं, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो हमने ये देखा कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम था, पर पर्सन इनकम था 1950 से 1980s में, वो धीरे धीरे बढ़ा है, गरीबी को धीरे धीरे कम किया है, बट इट हैज बीन कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, देयर हैज बीन लाइक अ कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन देयर ऑन एंड ऑफ। ऑफिशियल पावर्टी एस्टिमेट्स की बात करें तो इट हैज रिमेन अराउंड 45% ड्यूरिंग दिस पीरियड। Rapid economic growth in India since 1980s with a jump of 3.5 to 6% annual growth has happened. Again, हम इस ग्रोथ को जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन में हो रही है या अदरवाइज हो रही है उसे बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज जहाँ पे हम ओवरऑल 7% के इंक्रीज पे अटक रहे हैं, 12% के इंक्रीज पे अटक रहे हैं। ये जो साउथ एशियन कंट्रीज है, चाइना है, इन्होंने 24% का ग्रोथ, 25% का ग्रोथ दिखाया है, विच मीन्स इट्स क्लियरली डूएबल, स्पेशली कंट्रीज लाइक जापान विच हैव वर्कड अराउंड इट विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ एनी नेचुरल रिसोर्सेज एज सच। स्ट्रॉन्ग लिंक्स बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन जो है
वो ड्रॉ की गई है। एज ग्रोथ वाइडन्स अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। तो सिर्फ प्रोग्राम्स चला देना ही काफी नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ पॉलिसीज भी बनानी है। कैसे बेटर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती हैं, कैसे और एम्प्लॉयमेंट लाया जा सकता है, कैसे जो लोग ऑलरेडी एक सर्टेन इनकम को अर्न कर रहे हैं उसको बढ़ाया जा सकता है। बच्चे एज एन इंडिविजुअल अगर मेरी इनकम भी ग्रो करती है तो इवन दैट विल हेल्प विद द पॉवर्टी सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द कंट्री, एंड in decreasing it. How? Let me explain to you. If I'm earning 30,000 rupees, then 30,000 रुपए में मुझे घर का रेंट देना, घर का खाना, राशन, अपना खर्चा, अपने परिवार का खर्चा निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मतलब 30,000 रुपए में आराम से मैनेज करके मैंने फिगर आउट कर लिया। नाउ आई स्टार्ट अर्निंग 80,000 रुपीज। अब मेरे पास 50,000 रुपए एक्स्ट्रा है। तो पहले जो गाड़ी खुद से चलाना है मुझे, खाना खुद बनाना है मुझे, घर की सफाई खुद करनी है मुझे, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे मैं कर रही थी। नाउ आई विल हायर 3 people बिकॉज आई हैव एक्स्ट्रा मनी। अब मैं 10,000 रुपए एक्स्ट्रा जो है वो ड्राइवर को भी दे सकती हूँ, थोड़ा मुझे गाड़ी वाड़ी चलाकर इधर उधर ले जाने के लिए। अब जो है मैं स्पेंड कर सकती हूँ बाहर खाने पे। अब जो है मैं एक कुक रख सकती हूँ, अब जो है मैं एक मेड रख सकती हूँ। तो अब मैं लोगों को हायर कर सकती हूँ और मेरी स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। मेरी स्पेंडिंग जो बढ़ेगी वो दूसरे लोगों की अर्निंग बनेगी और इसकी वजह से उनकी अर्निंग बढ़ेगी और वो अपने गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। यानी कि मैंने किसी को हायर किया और बोला कि मैं आपको 5,000 रुपए दूंगी सफाई के, आप मेरे घर की सफाई कर दो। आपको मैं 12,000 रुपए दूंगी, आप मेरे घर में खाना बना दो। अब उनके घर पे वो इनकम बढ़ गई। एक इंसान, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, उस फैमिली का, वो कुछ अर्न नहीं कर रहा था, विल नाउ बी अर्निंग 10,000 रुपीज, 8,000 रुपीज, 12,000 रुपीज, बिकॉज आई स्टार्टेड अर्निंग मोर एंड आई हैव हायर्ड देम। तो इकोनॉमिक ग्रोथ ओवरऑल पूरे कंट्री को एक चेन रिएक्शन की तरह बहुत ज्यादा बेनिफिट करती है। It encourages investment in education for better economic prospects. The better I earn, the better education I would want to provide to my children, and the better human resources they will transform into, the better opportunities would be available for them, and a better income they would have. तो उनकी जिंदगी इस तरीके से फिर धीरे 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 थोड़ी 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 बेटर होती जाएगी। However, the direct benefits of growth may not reach the poor. डायरेक्टली नहीं आएगा, सीधा सीधा पैसे नहीं दिल जाएंगे शायद, लेकिन थोड़ा इनडायरेक्टली, थोड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएशन, ये सब तो चलता रहेगा। एंड बिलो एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स ऑल्सो अफेक्टेड मेनी रूरल पीपल, दैट वी हैव अंडरस्टूड। अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंटली रहती है। So which of the following steps are taken to reduce poverty? Anti-poverty programs, road construction, free education और no tax। ये कौन से स्टेप्स हैं जो हम पावर्टी को रिड्यूस करने के लिए ले रहे हैं इंडिया में? एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स चला रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन, फ्री एजुकेशन या फिर नो टैक्स। Okay, guys, it would be the anti-poverty programs, right? We are doing economic growth parity and we are also running anti-poverty programs. Now let's talk about few of these programs. यहाँ पे आपके लिए लिस्ट कर दिया गया है हर एक प्रोग्राम में आपको किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, वो हम थोड़ा याद कर लेते हैं। तो पहले एक बार लिस्ट देख लेते हैं। हमारे पास मनरेगा है सबसे पहले, देन यू हैव PMRY विच इज द प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, देन वी हैव द REGP, वी हैव SGSY, we have PMGY and Antyodaya Ann Yojana, which is AAY, right? सो एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स में सबसे पहले 2005 की बात करते हैं तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आता है। वो प्रोवाइड करता है 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी रूरल हाउस होल्ड फॉर लाइवलीहुड एंड सिक्योरिटी। It also aims to promote sustainable development by addressing issues like drought, deforestation and soil erosion. 1/3 of the jobs are reserved for women over here. तो यहाँ पे 1/3 जॉब जो है वो औरतों के लिए भी सेव करके रखी गई है। हमने देखा है कि 220 करोड़ लोगों को डे टू डे जो है पर्सन डेज जो है, नॉट डे टू डे, पर्सन डेज विच मीन्स 220 करोड़ पर्सन डेज
एम्प्लॉयमेंट दी गई है। 100 डेज थे तो उसमें से 220 करोड़ पर्सन डेज एम्प्लॉयमेंट दी गई है टू ऑलमोस्ट 4.78 करोड़ हाउस होल्ड्स। तो आप समझ सकते हो कितनी लोगों की जिंदगी बेटर हुई है, अफेक्टेड हुई है इन अ बेटर वे। ये स्कीम बेनिफिट करता है सोशल कास्ट, सोशल ट्राइब, वुमेन, इन सारे लोगों को, बिकॉज इनकी कंट्रीब्यूशन अगर आप देखो तो 23%, 17% एंड 53% है रिस्पेक्टिवली। वुमेन का इतना हाई होना इज अ ग्रेट थिंग। The average wage increased from 65 in 2006 to 132 in 2013। तो जो एवरेज वेजेस हैं, ऑन एन एवरेज जो आपको पैसे मिलते हैं, वो भी 65 रुपए से 150 रुपए तक 2013 में बढ़ गया और रिवाइज कर लिया गया है। मार्च 2018 में वेज रेट्स जो थे अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स के, उन्हें रिवाइज किया गया है। स्टेट वाइज वेरिएशंस लाई गई है रेंजिंग फ्रॉम 281 पर डे इन हरियाणा टू 168 पर डे इन बिहार एंड झारखंड, बिकॉज इन सारी जगहों पे वैसे भी थोड़ी ज़्यादा गरीबी है, तो उसके हिसाब से ये रिविजन किया गया है। ऑल्सो मनरेगा में ये भी है कि अगर आपको नहीं मिल रहा है अपॉर्चुनिटी, आपको काम नहीं मिल रहा है, तो आपको कॉम्पनसेट किया जाएगा 100 डेज के लिए, उतने दिन के पैसे आपको दे दिए जाएंगे। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की अगर बात की जाए तो 100 डेज वेज एम्प्लॉयमेंट देता है हर एक हाउस होल्ड को टू इंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज। प्राइम मिनिस्टर योजना देता है अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स ऑफ 1995 है फॉर क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। देन वी हैव द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली असिस्टेंस प्रोग्राम है, जो स्टेट्स को देती है बेसिक सर्विसेज जैसे कि अच्छा हेल्थ केयर, एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ताकि ये सारी बेसिक चीज़ें लोगों को प्रोवाइड हो सके। क्योंकि हमने ये देखा है कि गरीबी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास पैसे ना हो, गरीबी बहुत सारे और भी चीज़ों को इन्वॉल्व करती है, ठीक है, जैसे कि बेसिक नेसेसिटीज का मीट ना होना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भी है which assists poor families above the poverty line by organizing them into self-help groups through a mix of bank credit and government subsidy। अंत्योदय अन्न योजना की बात की जाए 2000 की, तो द स्कीम टारगेटेड टू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ पे 25 केजी जो है फूड ग्रेन्स, 2 केजी ऑफ व्हीट एंड 3 के सॉरी 2 रुपीज़ में 1 केजी गेहूँ और 5 रुपीज़ में चावल, यानी कि 5 रुपए में आपको पूरा 1-1 केजी गेहूँ और चावल, व्हीट एंड राइस वुड बी अवेलेबल फॉर द पीपल। मिक्स्ड रिजल्ट्स हमने देखे हैं इसकी वजह से। ये जो प्रोग्राम्स हैं ऑफ कोर्स इनका असर अच्छा आ रहा है, काफ़ी बेनिफिट कर रही है, और इसका मिक्स्ड रिजल्ट देखा है हमने। जैसे कि थोड़े चैलेंजेस भी आए, जो बेटर इंप्रूवमेंट हुई है वो तो हुई है, बट चैलेंजेस में हमने देखा है कि लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, ठीक है, अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। टारगेटिंग आर द मेजर रीजन फॉर द लिमिटेड सक्सेस। अच्छे तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है। प्रेवलेंस ऑफ ओवरलैपिंग अमंग मल्टीपल स्कीम्स आर देयर। बेनिफिट्स ऑफन डू नॉट रीच द डिजर्विंग पुअर डिस्पाइट द गुड इंटेंशंस। नया एम्फेसिस ये भी देखा गया है ऑन प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इज टू इम्प्रूव द इम्पैक्ट एंड द रीच ऑफ द पीपल। सो चैलेंजेस बहुत सिंपल है, पावर्टी इज डिक्रीजिंग, लेकिन ऑफ कोर्स एक बड़ा चैलेंज रह जाता है हमारे लिए अभी भी। एक मेजर रीजन जो है वो है डिस्पैरिटी इन इनकम, लोगों को बराबर इनकम नहीं मिल रही है पूरी तरीके से। कुछ ग्रुप्स जो है वो वल्नरेबल ज़्यादा है, हिस्टोरिकली उन्हें डोमिनेट किया गया है, सोशल एक्सक्लूजन की प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है। वल्नरेबिलिटी जो है वो इवन इन द वल्नरेबल पीपल कुछ लोगों की ज़्यादा हाई है, लाइक द फीमेल्स, द एल्डरलीज, द चिल्ड्रन। It is expected that progress in the next decade should happen with higher economic growth, education, and of course, women empowerment has been a very, very important factor. So, official poverty definition focuses, एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हम बात करते हैं अभी मिनिमम सब्सिस्टेंस की, ठीक है, नॉट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि हम कह रहे हैं कि मिनिमम जिंदगी चलाने के लिए आपको 2100 कैलोरी चाहिए, आपके 10 रुपए लगेंगे खाने के, आपके कपड़े के इतने, घर के इतने, साफ के पानी के इतने। बट क्या सिर्फ बेसिक मिल
मिला देना कि आप चावल थोड़ा सा दाल चावल से सब्जी खाओगे वो काफी है. व्हाट इफ अ पर्सन वांट्स टू हैव अ प्रॉपर मील. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन नहीं हो रही है. सर्वाइवल अगर ठीक से हो जाए उस बेसिस पे अभी पॉवर्टी लाइन की असेसमेंट की जा रही है. तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना है. सिर्फ लोग जिंदा रह पाए और ढंग से जी पाए, मतलब जी पा रहे हैं बिल्कुल अंडरनरिश्ड, इल, सिक, ऐसे नहीं हो रहे हैं. इस चीज पे अगर हम फोकस करके चलेंगे तो दैट्स नॉट द बेस्ट केस सिनेरियो. वी वुड वांट टू इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड. ओनली देन विल मूव बेटर एंड मोर टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द नेशन. So suggestion to broaden the concept to encompass human poverty has been there, including education, healthcare, job security, and freedom from discrimination. Eradicating poverty is a moving target with bigger challenges ahead, including healthcare, education, job security, gender equality, and dignity for the poor. These are the things that we have taken care of and that we are trying to fight with. But again, it's a long way. All of us have to contribute, so let's try our best and keep contributing towards it. Now, a quick reminder, you guys, that we have the virtual lab experience for you. Just go ahead, test it. It's a beautiful, beautiful, fun app. और प्रैक्टिकल्स अभी 10th तक तो आपके कहीं नहीं जा रहे हैं और 10th में असेसमेंट भी होगी, तो यू वुड नीड टू प्रैक्टिस, यू वुड वांट टू प्रैक्टिस. So make sure that you do that. And we already have all the classes and a lot of 3D learning videos and interesting interactive sessions going on for you on the Vibe app. So do access it. And then we have the Lens application जिससे आप सब कुछ easily access कर सकते हो. Doubt resolution के लिए जैसे आप देख सकते हो, आप जैसे ही यहाँ पे जाओगे, let me also hide myself. ऐप पे यहाँ पे आस्क अ डाउट है, इस पे क्लिक करते ही इट विल रीडायरेक्ट यू टू द व्हाट्सएप चैट एंड वहाँ पे पॉपअप हो जाएगा चैट अपने आप आपके लिए. यहाँ पे आप अपने डाउट को रिजॉल्व कर सकते हो. एंड डू नॉट फॉरगेट टू बी अ पार्ट ऑफ आवर टेलीग्राम चैनल. द लिंक एंड द QR कोड वुड बी शेयर्ड विथ यू. ये हमारा वन स्टॉप शॉप है एक तरीके से, ऐसा कह सकते हैं, जहाँ पे हम आपसे कनेक्ट करते हैं. ठीक है, तो समराइज कर लेते हैं. Poverty is characterized by the lack of basic resources necessary for a minimal standard of living. Social scientists use various indicators to understand poverty, including income, education, health, and access to clean water. India's calorie-based poverty line. India's standard calorie needs 2,400 calories per day in rural areas and 2,100 calories per day in urban areas. The poverty line in India, which is on income basis, 816 रूरल एरिया में पर डे पर मंथ चाहिए होते हैं और 1,000 रुपए अर्बन एरियाज एज पर 2011 एंड 2012. ये जो सर्वे हो रही है कि कितने पैसे चाहिए, कितने कैलोरीज चाहिए, इज बीइंग कंडक्टेड द लार्ज स्केल सर्वेज बाय NSSO, which is National Sample Survey Organization. यूनिफॉर्म वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी लाइंस की बात की जाए तो $1.9 पर पर्सन पर डे जो है वो परचेजिंग पावर पैरिटी के लिए रिक्वायर्ड है फॉर डेवलपिंग नेशंस, लाइक स्टैंडर्ड जो सेट किया गया है बाय वर्ल्ड बैंक. इट एनेबल्स इंटरनेशनल पॉवर्टी कंपैरिजंस. पॉवर्टी एस्टिमेट्स की बात करें तो डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियोज 45%, 1993 to 1994 में 22% तक आ गया है. The number of poor reduced from 407 million to 270 million 2004 से 2011 में, with an annual decline of 2.2%. Poverty in India is not evenly distributed among social and economic groups. Scheduled caste and scheduled tribe households are the most vulnerable to poverty in terms of social groups. Poverty exhibits interstate disparities as well. It's not the same for all the states. It has different level. For example, Kerala has very low, whereas Bihar has very high poverty rates. According to World Bank, people living on less than $1.9 per day are considered to be poor. Over the years, the global level of poverty has declined, but it varies among different regions. Causes of poverty जो है वो ब्रिटिश रूल, लो इनकम, लैक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन साइज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड लैंड भी है. एंटी पावर्टी मेजर्स की बात करें तो हमने प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पे टारगेट किया है. वी हैव टारगेटेड एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स, मनरेगा, अंत्योदय अन्न योजना है ना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये सारी चीजें हैं जो हमने इम्प्लीमेंट की हैं. So with this, you guys, we have finished our chapter.
we have done the revision. Do not forget, Imbibe सिर्फ अब कुछ दिनों के लिए ही free access के साथ available है. So just go ahead, enjoy as much as you can on the applications, and make sure that you are a part of our Telegram channel. The QR code and the link is given for you. So if you have any other queries, any other doubts, do put it in the comment section. If you need any other specific session that is required by you, आप मुझे comment section में बता दोगे, वहाँ से मैं आपके लिए create कर दूँगी पढ़ करके. And if you enjoyed the session, make sure to hit the like button and do share the video with your friends. And with this, we have come to the end of the session. Thank you so much for being here. I'll see you guys soon. Till the next time, stay safe, take good care of yourself. Hasta la vista, bye-bye, ciao. Have a great time. All the best for your preparations and your exams. See you soon. Stay tuned and keep imbibing.